Most of the fundamentals we have already gone through. We were here at this point of time. We understood as to how the contours of development, the contours of growth and development have shaped themselves over the years, how across the different decades, the definitions, the characterizations of growth and development have taken different shapes, how they have evolved from mere economic growth up to human development and now towards happiness and fulfillment. So these are the aspects that we have already understood in a brief manner. Okay. These are general. We have still not gone into India specific things, but the world view, the global understanding of these concepts, we have already gone through now. So anywhere you are asked about this, the purpose of making these charts and then giving you pointers is this. Believe me, in the examination hall, in the written examination, you would require to recall things. And as I already urged before you, unless you reproduce there the keywords and phrases, your scores will be mediocre. It is very difficult to score high because the competition is so stiff, and your answers have have to be different. I mean, it is not to say that you will be able to produce a miracle or something like that there, but at least your answers have to be slightly up to the mark and then different from the rest of the mass. Otherwise, if there is no differentiating aspect in your answer, then how do you expect the examiner to evaluate yourself differently? That's not the correct proposition, isn't it? So, ये जितने भी लाइंस लिखी हुई हैं, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ऐसे के ऐसे ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि भाई जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो इन 5 हेडिंग्स या इन 4 हेडिंग्स के अंतर्गत मैं इसका विश्लेषण करूंगा या करूंगी. ठीक है. इक्विटी की बात है, मान लीजिए ऐसा पूछ लिया कि व्हाट इज, प्लीज डिफाइन इक्विटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. हाउ डू यू सी ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू इंटरवेंशंस फोकस्ड ऑन इक्विटी. इक्विटी पर फोकस करने वाले कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशन है जिनके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा सकता है. इस प्रकार की चीजें आ जाए तो देन यू शुड बी एबल टू immediately recall these things. The access to productive assets, access to credit, fiscal distributive measures, political opportunities, social and legal freedom, things like that. ऐसा मिलता जुलता आपको थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट तो याद रहने ही चाहिए. That was the purpose. Okay, all right. Now we go to human development and how it is measured. क्योंकि हमने last lecture में we have already acquainted ourselves with the basic concept of human development. We have also understood as to why at all we are so curious to measure human development. Then we understood that it is necessary to measure because unless you have a reference point, it is not possible to chart out the territory for future, isn't it? आपके पास जब तक एक रेफरेंस पॉइंट नहीं कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पहुंचना है, unless you have a reference point to begin with or to a standard point to compare with, how would you plan it? How would you chart it for your economy? And that is why, और स्पेशली ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट जैसी चीजें तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, आप एग्री करेंगे, क्योंकि ये वैसे ही पहले से ही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, बहुत सारी इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, तो इसलिए इनको क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है. ठीक है, इनको क्वांटिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी. और ये सब हम प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं. ध्यान रखिएगा कि स्टेट जो है वो कैसे इंश्योर करे, और हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी ये जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट ला सके. इसलिए स्टेट को प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग करते समय सवाल आता है कि क्या लक्ष्य रखा जाए. ग्रोथ, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ रखा जाए? बोला नहीं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखा जाए? हाँ ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे बेटर है. फिर आया ह्यूमन डेवलपमेंट रखा जाए? बोला बहुत बढ़िया, ये तो और भी अच्छा है. ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करिए तो सब अपने आप ही हो जाएगा, बाकी चीजें दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. फिर बोला नहीं, हैप्पीनेस की तरफ. बोला बहुत बढ़िया, वो तो सबसे अच्छा है. आप हैप्पीनेस को पैरामीटर बना लीजिए, अपना लक्ष्य बना लीजिए प्लानिंग का, तो बहुत ही अच्छा है. इस प्रकार से ग्रो इसका इवोल्यूशन हुआ है इस आइडिया का. ठीक है, तो अभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसके बाद हैप्पीनेस की बात करेंगे. तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे नापा जाए, तो कहा गया कि एक इंडेक्स बनाते हैं. ओके, एक इंडेक्स बनाई गई जिसे आप सब जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, और उसके 3 वेरिएबल्स बताए गए कि 3 कंपोनेंट्स इसके होंगे. पहला हेल्थ से रिलेटेड होगा, दूसरा एजुकेशन या नॉलेज से रिलेटेड होगा, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ह्यूमन डेवलपमेंट की जब भी बात की जाए तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3 हेडिंग्स पे मुझे एनालाइज करना है. नंबर 1 हेल्थ,
नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कैसे बनती है वो इंडेक्स? लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है एट बर्थ, ठीक है। एजुकेशन है, ये तो हेल्थ वाला हो गया। जब एजुकेशन की बात आती है तो वो उसमें क्या क्या नापते हैं भाई? तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो एडल्ट हैं उनके लिए मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की जो एवरेज है, औसत है, एक पॉपुलेशन को ले लीजिए, उसमें जो एडल्ट हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने साल किए हुए हैं, स्कूल कितने साल रहे हैं। और दूसरा एडल्ट का तो हो गया, जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। आप समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्यों लिखा हुआ है ना? ऑब्वियसली क्योंकि अभी तो उनकी स्कूलिंग चल रही है ना भाई, उनकी स्कूलिंग तो चल ही रही है ना, उनका वो कहां तक जा पाएंगे ये तो आपको यू हैव ओनली टू प्रोजेक्ट इट, इजंट इट? यू हैव टू प्रोजेक्ट इट। तो एडल्ट्स के लिए जिनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है उनका निकाला जा सकता है, बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो एक माप ली जाती है, तो इससे एजुकेशन वाला एस्पेक्ट कवर हो जाता है। और फिर लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रॉस नेशनल इनकम से जोड़ा जाता है, लेकिन ये ग्रॉस नेशनल इनकम वो नहीं, सिंपल वाला नहीं, ध्यान से समझिए, यहां पर ही ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज आ जाती है। मैं पहले भी आपको हल्का सा बता चुका हूं और आपसे ये भी कहा था कि इसको पढ़िएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? मतलब किसी देश की ग्रॉस नेशनल इनकम को अगर आपको और रिफाइंड तरीके से समझना है और परिशोधित जो स्वरूप में समझना है, तो आप इसको ऐसे देखिए कि मेरा 100 रुपया, मेरा 1 रुपया, चलिए 1 रुपया से लीजिए एग्जाम्पल, 1 रुपये में एक कितना दूध आ जाता है, और उतना ही दूध लेने के लिए कितने डॉलर लगते हैं, उतना ही दूध लेने के लिए कितने येन का खर्चा होता है, अलग अलग करेंसी सबकी देखिए। कहने का अर्थ यह है कि जब जो है आर्टिफिशियल कंपैरिजन मत कीजिए कि डॉलर जो है आज, रुपया जो है आज इतने उसमें गिर गया, चढ़ गया, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, मजबूत हो गया, ये इस सब का ये नहीं आएगा इस पिक्चर में। सिंपल सा हमको ये बताइए कि किसी एक सामान को खरीदने के लिए मेरी करेंसी में कितना खर्च करना पड़ेगा और आपकी करेंसी में कितना खर्च करना, आपके यहाँ कितने में मिल जाता है वो। खर्च करना भी नहीं, करेंसी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। हाउ मच मनी डू यू हैव टू स्पेंड फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क? हाउ मच मनी एन अमेरिकन हैज टू स्पेंड? हाउ मच जापानीज? इससे जब आप मेजर करेंगे तो, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता की बात आप समझ रहे होंगे, जीवन की गुणवत्ता की बात हो रही है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात, जीवन स्तर की बात हो रही है, तो उसके लिए इस कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत थोड़ा है कि हमारा रुपया मजबूत हो गया, हमारा रुपया कमजोर, ये सब कुछ नहीं। सिंपल सा बताइए कि खाने पीने की जो चीज है वो हमारे यहाँ इतने में मिल जाती है, तो हमें उससे मतलब है ना, अमेरिका में कितने डॉलर से मिलते हैं इससे हमें क्या मतलब। सो दैट्स हाउ यू कंपेयर। परचेजिंग पावर आप दिखाइए। करेंसी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप जब देखेंगे, जब हम लोग मॉनिटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। करेंसी का सिर्फ एक पर्पस, एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, परचेजिंग पावर। सिंपल सी बात यह है कि हमारे यहाँ हो सकता है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कि हो सकता है कि 1 रुपया, 1 डॉलर के लिए 100 रुपए का भाव चल रहा हो, मान ली, ठीक है। एक वहां पर जो है 1 डॉलर अमेरिका का और 100 रुपया हमारा, इस प्रकार का भाव चल रहा है, तो 100 गुने का डिफरेंस हो गया, समझ लीजिए ऐसे, ठीक है, करेंसी में 100 गुने का डिफरेंस हो गया। लेकिन 1 लीटर दूध की ही बात अगर कर लें तो 1 लीटर दूध वहां कितने डॉलर में आता है और यहाँ कितने डॉलर में आता है, इसमें भी 100 गुने का डिफरेंस होगा, ये जरूरी नहीं। आप समझे? आप चीजों की कीमत का जब कंपैरिजन करेंगे, करेंसी का नहीं, चीजों को खरीदने में कितना खर्चा हो रहा है, इसका जब दोनों जगह कंपैरिजन करेंगे, वो जरूरी नहीं कि करेंसी के ही कंपैरिजन को फॉलो करें। आप समझ गए आप? तो आम आदमी को, जनता को, देश की जनता को जो है उसको इस चीज से मतलब है कि व्हाट, हाउ मच मनी डू आई हैव टू स्पेंड टू बाई दिस थिंग, और सिर्फ उस चीज का कंपैरिजन होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ग्रॉस नेशनल इनकम को अगर परचेजिंग पावर पैरिटी पर कंपेयर किया जाए अलग अलग कंट्रीज के, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आइडिया आ जाता है। तो हेल्थ का आइडिया आ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से, एजुकेशन का आइडिया आ गया एडल्ट और चिल्ड्रन के स्कूलिंग को देखकर, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आइडिया आ गया ग्रॉस नेशनल इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी पे आ गया। ठीक है। सवाल है कि क्यों आखिर ये HDI ही क्यों चुना गया, ऐसे क्यों बनाया गया इसको? ऐसा इसलिए बनाया गया, और बहुत आसान उदाहरणों से समझेंगे, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अनलाइक अदर थिंग्स, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इन चीजों को टच नहीं कर पाता है, हेल्थ और एजुकेशन को, उससे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा बहुत हो सकता है रिफ्लेक्ट कर सके कि इसमें इस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है ठीक हो, जरूरी नहीं, वो भी जरूरी नहीं है।
तो कहने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिडायमेंशनल है। एक ही चीज, बस एक ही चीज कि पैसा पैदा कितना हो रहा है, पैसा पैदा कितना हो रहा है, ग्रोथ कितनी हो रही है, दैट्स ऑल। उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, लोगों के जीवन तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं, इसका इसका जो है इसकी माप वो नहीं ले सकता है। इसलिए एचडीआई को जैसे एक इंडिकेटर को चुना गया जो कि मल्टी डायमेंशनल हो। नंबर 2, ये ज्यादा मीनिंगफुल है एज ए नेशनल एवरेज। एक एज ए नेशनल एवरेज ज्यादा मीनिंगफुल है। इसके पीछे की बात मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों ज्यादा मीनिंगफुल है। एक एवरेज के तौर पर, औसत के तौर पर, यह आंकड़े की बात कर रहे हैं। एचडीआई एक डेटा के तौर पर एक ज्यादा मीनिंगफुल एवरेज क्यों है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं, पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं, यही क्यों, जीडीपी क्यों नहीं, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये सब कॉन्सेप्ट क्यों नहीं? वो तो आप बता चुके कि वो यूनिडायमेंशनल होते हैं और ये मल्टी डायमेंशनल, ये हम समझ। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज मोर मीनिंगफुल एज अ नेशनल एवरेज। इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। एवरेज वो ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा मीनिंगफुल होगा जिसमें जो डिस्पैरिटीज हैं वो रियल टर्म्स में रिफ्लेक्ट हो। डिस्पैरिटीज का सही मायने में वास्तविक जीवन में जो अंतर है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए मान लीजिए है, और ऐसे भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में जिनका जो है वो 1.5 करोड़ रुपया या 150 करोड़ रुपया पर डे है इनकम, ठीक है। अब इस एवरेज को देखिए कि 1.5 लाख रुपया और 150 करोड़ का एवरेज आप निकाल लीजिए, ठीक। दूसरा एक तरीका यह है, हम जो खाने पे खर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो 150 करोड़ कमाता है तो क्या सोना चांदी थोड़ा खाने लगेगा? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? खाएगा वही, हाँ, उसके थोड़ा सा गुणवत्ता में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, खाने पीने की चीज में हो सकता है थोड़ा बेटर खाना खाता हो बस। लेकिन 1.5 लाख और 150 करोड़ वाला ये डिफरेंस उसके खाने पीने में या पहनने में शायद नहीं हो, उतना डिफरेंस नहीं होगा। तो जो बेसिक चीजें हैं, इनकम की जो डिस्पैरिटी है वो कुछ बेसिक चीजों के डिस्पैरिटी में ट्रांसलेट हो उसी प्रोपोर्शन में, ये जरूरी नहीं है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए अगर पता ही करना है कि मेरी जीवन की गुणवत्ता में और उसकी जीवन की गुणवत्ता में कितना अंतर है, तो ये 1.5 लाख और 150 करोड़ वाला जो है जरूरी नहीं कि सही आपको जो है वो अंदाजा दे सके। आप ये देखिए कि मैं किस गाड़ी से चलता हूँ, वो किस गाड़ी से चलते हैं भाई, ठीक है। गाड़ी तो लग्जरी वाला बात हो गई। मैं क्या खाता हूँ, वो क्या खाते हैं, मैं किस प्रकार जो है, मेरे लिए लिविंग स्पेस कितना जरूरी है, उनके लिए लिविंग स्पेस कितना जरूरी है, ये जो बेसिक मेयर मिनिमम चीजें हैं, अगर उनका एवरेज आप निकालिए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, यही तो बात हो रही है। अब आप बताइए कोई 150 करोड़ रुपया कमाता है रोज का, तो क्या कर लेगा? अगर मैंने पीएचडी मान लीजिए कर रखी है, एजुकेशन की बात करिए, चलिए एग्जाम्पल लीजिए कि मैंने पीएचडी कर रखी है, वो 150 करोड़ ले लिया है, तो क्या कर लेगा? क्या करेगा? मान लीजिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इट्स नॉट द बेस्ट एग्जांपल टू से, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि एजुकेशन अटेंड, अगर मेरे पास बेसिक मिनिमम पैसा है फीस भरने लायक, तो मैं भी वो कोर्स कर सकता हूँ जो तुम कर सकते हो। क्योंकि एजुकेशन अगर मान लीजिए सरकार प्रोवाइड कराती है, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए सरकार फंड करती है, यूनिवर्सिटीज में जो है फीस ज्यादा नहीं है, तो फिर तुम्हारा अमीर होना हमारा गरीब होना कोई बहुत अंतर नहीं रहेगा, हम भी पढ़ ले जाएंगे, हम भी कर ले जाएंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो 150 करोड़ रुपए जो कमाते हैं उनका बच्चा है, और हम और आप हैं। एग्जाम अगर हमको छूट है देने की, हम एलिजिबल है, तो हम भी दे लेंगे, हम भी उस जगह पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंच सकता है। उसका 150 करोड़ रुपया धरा रह जाएगा। कुल मिलाकर बात ये धरा रह जाएगा, मतलब दैट विल नॉट बी एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। में भी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत कोचिंग का और स्टडी मटेरियल का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज्यादा अगर अमीर है और ज्यादा स्टडी मटेरियल ले लिया अपने बच्चे के लिए, तो निश्चित फेल हो जाएगा। तो आप जानते हैं मैं सख्त खिलाफ हूँ ज्यादा स्टडी मटेरियल के। तो कहने का अर्थ हुआ, ये इसका मतलब है कि इनकम की तुलना में ये जो इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये ज्यादा मीनिंगफुल एवरेजेस हैं। इनकम की डिस्पैरिटी इज नॉट नेसेसरली द करेक्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ द ओरिजिनल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। ओके। तीसरी चीज, हायर इनकम ऑफ वन में बी डेप्रिवेशन ऑफ अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दरअसल। देखिए एग्जाम्पल समझिए बात को, फिर चले जाइए उसी उदाहरण पर, इक्वेटोरियल गिनी के एग्जाम्पल पर चले जाइए, जो उस कंट्री का हमने एग्जाम्पल लिया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए उस सिचुएशन को कि जहां पर कुछ गिने चुने 10-12 जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं मान लीजिए, उन्होंने ही सारा तेल के कुएं पर और गैस के जो भी भंडार है उन पर अधिकार कर रखा है। उससे जो भी कमाई होती है वो इतना ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि ये स्कार्स रिसोर्स है, तेल और गैस वैसे ही कम है,
तो उसका इतना ज्यादा पैसा मिल जा रहा है कि और छोटा नेशन है, तो जब आप एवरेज निकालिएगा तो पूरे नेशन का जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके फाइन, लेकिन ध्यान से इस बात को सुनिए कि किसी एक पॉपुलेशन के किसी एक सेक्टर का, एक सेक्शन का ग्रोथ होता चला जा रहा है, उसमें यह पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो ग्रोथ हो रही है इट इज एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स। इनकम इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं। मान लीजिए गरीब लोगों का कोयले के खान में, गैस के जो है उसमें भंडार पे या तेल के कुएं में शोषण हो रहा है गरीबों का, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो जिस प्रोपोर्शन में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें नहीं हो पा रहा है। ओके, तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इनकम अगर बढ़ रहा है तो देयर आर फेयर चांसेस दैट पर्टिकुलर इंक्रीज इज एक्चुअली ड्यू टू इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम, और वेल्थ सही से नहीं हो रहा है इसलिए उसकी इनकम बढ़ रही है। तो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा दिखाई करेगा, लेकिन वो पहुंचा नहीं है वहां तक, पर कैपिटा तक एक्चुअली। ये है कहानी इसकी। तो एक का हायर इनकम अगर बढ़ रहा है तो वो किसी दूसरे के कॉस्ट पे हो सकता है उसके हिस्से का बलिदान किसी और के घर में हो रहा हो। लेकिन एचडीआई के साथ ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया चीज है ये। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक ऐसी इंडेक्स है जिसमें मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मुझे अच्छी फैसिलिटीज मिल गई, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि किसी और को बलिदान करना पड़े। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये मैं कहना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिए गए जो तीनों पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जरूरी नहीं कि एक का बढ़ रहा है तो जरूर किसी का नुकसान हो रहा होगा, नहीं, दैट्स नॉट द केस। इसीलिए ये एक बेटर पैरामीटर है, ठीक है, कि एक की ग्रोथ किसी दूसरे के जो है वो कंधे पे, पीठ पे पैर रख के हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे इनकम के साथ वो चीज लागू हो सकती है यहाँ पर की, तो इसलिए और एक पॉइंट मिला, इसलिए एचडीआई बेटर है। और क्या अच्छी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है वो जेंडर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, ज्योग्राफिकल जो है लोकेशन के आधार पर, इनके आधार पर अलग अलग इसके एनालिटिकल पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि जो आप सर्वे करने जाइए जो है तो पता चला हेल्थ सेक्टर का सर्वे कर रहे हैं आप, तो उसमें आप जेंडर, एथनिसिटी, ज्योग्राफिकल, उसके हिसाब से आप 3 एनालिटिकल टूल्स लगा सकते हैं। एमएस डेटा आपके पास है, डेटा में आप फीड कर दीजिए कि अच्छा ये बताइए कि 25 साल की उम्र से ऊपर वाले जो महिलाएं हैं उनके हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। फिर एथनिसिटी की बात आ गई कि अच्छा हम ये जानना चाहते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनमें एचडीआई कैसा है। तो ये इतना बढ़िया टूल है कि जो है जिसे कहते हैं कि समाज के एक बहुत फाइनर लेवल तक जाकर समाज के जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें जेंडर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरह से आप एचडीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और विश्लेषण में उसका उपयोग कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। इनकम की अपनी लिमिटेशन है। इनकम की लिमिटेशन क्या है? वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है ना, इसलिए उसका कितना इस्तेमाल कर पाओगे आप, उसका क्या करोगे, वो स्टैटिस्टिकली उतना रेलेवेंट नहीं रह जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली उसका स्कोप बहुत नैरो है इनकम का। लेकिन हेल्थ, एजुकेशन में तमाम वेरिएबिलिटी है, बहुत सारी वेरिएबिलिटी आ सकती है, जेंडर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर। और सबसे बड़ी बात कि क्योंकि आप ये कर सकते हैं, आप ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जेंडर में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या स्थिति है, या तीनों को एक साथ रख लीजिए, देखिए तीनों को एक साथ रख के देखते हैं। इस इंडिया के इस पर्टिकुलर स्टेट में, मान लीजिए मैं एक प्रदेश बना दूं ऐसे, इंडिया के इस प्रदेश, भारत के इस प्रदेश में भौगोलिक हो गया, हाँ हो गया, जो आदिवासी क्षेत्र है, एथनिसिटी हो गई, हाँ, उसकी महिलाओं में हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। देखिए कैसे एनालिसिस की जा सकती है। तो ये एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है इसका। और चूंकि आप ये कर सकते हैं, इसीलिए फिर आप अपनी प्लानिंग में, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बहुत ही पुअर है, स्पेशली इस तरह की महिलाओं में, या इस तरह के पुरुषों में, या इस एज ग्रुप में, ठीक है, या इस एथनिसिटी में ये स्थिति बहुत खराब है। इसलिए हम अपनी पॉलिसी में ये वाली स्कीम लागू कर लेते हैं ताकि इसका फायदा उन्हें मिले। तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक सर्वमान्य चीज है कि हाँ ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, और इसका जो है इस्तेमाल पॉलिसी मेकिंग और जो है प्लानिंग में किया जाना चाहिए और किया जा रहा है।
कैसे बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो, ये प्रीलिम्स वगैरह का क्वेश्चन हो सकता है मेंस में, ये वाला पार्ट मेंस में नहीं आया शायद, लेकिन जान लीजिए कि जियोमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, ज्यामितीय जो औसत है वो लिया जाता है किसका, यही जो तीन हमने देखे ना, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनका तीनों का लेके और स्केल बनाई जाती है 0 से 1 तक। 0 से 1 के बीच में स्केल हो जाती है, 1 हाईएस्ट हो गया और 0 लोएस्ट हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स उससे बन गया, इसको ये आपको बताया ही था, उससे एजुकेशन का इंडेक्स बन गया, पर कैपिटा निकाल लिया, उससे जीएनआई इंडेक्स हो गया, तीनों को कंपोजिट कर देते हैं, ठीक है, तो ट्राई डायमेंशनल इंडेक्स बन गई, और 0 to 1 उसका स्केल होता है। और देखिए जिन कंट्रीज का स्कोर 0.8 से ऊपर आता है वो हाई एचडीआई वाले होते हैं, जिनका 0.5 से 0.799 आवे वो मीडियम कहलाते हैं, और जिनका 0.499 से नीचे हो वो लो एचडीआई कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, आप जानते ही हैं। तो क्या कहा जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में एक परफेक्ट पैरामीटर है, और अब हमने पा लिया है जो अल्टीमेट आदर्श जो सूचकांक हमको चाहिए था, वो आदर्श सूचकांक हमको जो है वो मिल गया है? नहीं, उसमें भी अपनी कुछ कमियां हैं भाई, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से परफेक्ट है। ये सिंपल सी बात है कि इट्स इम्प्लिसिटली एज्यूम्स ट्रेड ऑफ्स बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स। बहुत बढ़िया चीज है, सुनो बात को ध्यान से, सुनो, वे समझ जाओगे फट से। वैसे तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन जाने रहो, एनालिटिकल एस्पेक्ट के लिए जरूरी है। 3 हमने बताया ना आपको, देखो इसको 3 बताया ना कि हेल्थ है भाई, एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ओके फाइन। अब मैं आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन देता हूं और आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप बताइए मुझे सोचकर कि भाई अगर कोई देश है छोटा सा, मान लीजिए 2 देश है, ठीक है, उसकी 2019 में मान लीजिए गणना हुई, एचडीआई जो है उसका निकाला गया, और वो मान लीजिए 110वें नंबर पे आया। उसको बहुत खराब लगा कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो इसको जो है इसको बढ़ाया जाए, अपनी रैंकिंग सुधारी जाए। मान लो छोटा देश है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, किसी कारण से कुछ ऐसा करके या कुछ नैसर्गिक संसाधनों का दोहन करके, जैसे भी करके, मान लीजिए वो इसमें और उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा, और वो इसको इस चीज से बढ़ा ले जाए, अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम दोबारा आ रही है। देखिए आप कि ग्रॉस नेशनल इनकम को खूब अच्छे से बढ़ा ले जाए, तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि जो है इसमें अगर जरा सी बढ़ोतरी कर ले, और अगर इसका वेटेज ज्यादा है, इस कंपोजिट इंडेक्स में अगर इस पार्ट का वेटेज ज्यादा है, तो हेल्थ और एजुकेशन में फिसड्डी रहने के बावजूद भी अगर नेशनल इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले पैरामीटर में जाकर नेशनल इनकम पर कैपिटा को अगर वो बहुत तेजी से बढ़ा ले जाए, तो वो उसका एचडीआई जो है वो सुधर जाएगा, जबकि अल्टीमेटली वो सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये अपने से पुराने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं उससे बेटर इंडिकेटर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज स्टिल नॉट परफेक्ट। इट्स स्टिल नॉट परफेक्ट, ओके। उसमें भी अपनी लिमिटेशन है। जैसे एग्जांपल इसमें आता है जिम्बाब्वे का, एक पर्टिकुलर केस स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं $0.52, अगर मुझे ध्यान से याद है, तो आधा डॉलर का जो वेटेज निकलता है, ध्यान से समझे मेरी बात को, 3 चीज हो गया, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे नापते हैं? पर कैपिटा इनकम से नापते हैं। तो उस जिम्बाब्वे के केस में ये देखा गया कि अगर आधा डॉलर, ये $0.5 जितना, ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर एचडीआई को एक्स से वाई तक ले जाना है जिम्बाब्वे को, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिम्बाब्वे का एचडीआई है एक्स, लेकिन उसको इंप्रूव करना है और वो वाई तक जाना चाहता है, ऊपर चढ़ना चाहता है पायदान में। तो जो एनालिसिस है वो बताती थी कि जिम्बाब्वे एक तरफ या तो ये मेहनत कर ले कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है उसको 1 साल बढ़ा ले, समझे मेरी बात? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है उसको 1 साल या तो बढ़ा दे, तो वो 1 पायदान 2 पायदान ऊपर हो सकता है, या अगर वो नहीं कर पाए तो अपनी जो परचेसिंग पावर वाला जो वो है ग्रॉस नेशनल इनकम वाला, उसको आधा डॉलर बढ़ा दे। अब आप सोच कर बताइए, सोचिए कि ये अपने आप में एक चकित कर देने वाली चीज नहीं है क्या? किसी कंट्री के पॉपुलेशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 1 साल से बढ़ा देना, ये कोई छोटा मोटा काम है क्या? लेकिन ऐसा संभव है
कि किसी कारण से, चाहे उसके इन्वेस्टमेंट अच्छे हो जाए, चाहे एक्सपोर्ट बहुत अच्छा बढ़ जाए, किसी कारण से ऐसा हो सकता है कि एक ही साल में जो है वो आधा डॉलर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आधा डॉलर वो इंप्रूव कर जाए। तो ये ट्रेड ऑफ देखिए कि एक साल कि अब किसी के लिए कौन सी चीज ज्यादा आसान है बताइए? कोई चक्र टाइप का देश हो, चक्र टाइप इकोनॉमी हो, तो उसके लिए क्या आसान है? वो सब लाइफ हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट और किस तरह का आंदोलन चलाना पड़ेगा एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को इंप्रूव करने के लिए, यू अंडरस्टैंड? जबकि हो सकता है कि एक्सपोर्ट सेक्टर अगर बूम कर रहा हो तो दुनिया के साथ बहती गंगा में भी हाथ धो लिए, इनका भी बढ़ गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दैट्स द डिमेरिट, फर्स्ट डिमेरिट, कि हाँ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स बहुत ही अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से जो है वो जो करेक्ट पिक्चर को रिफ्लेक्ट करे जरूरी नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल है कि थोड़ा सा जो जितना मेहनत लगता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंप्रूव करने में, उससे कहीं कम मेहनत में शायद इधर ये बढ़ा ले जाए और फिर भी एचडीआई इंप्रूव हो जाए। तो ये सब लैक्यूना उसमें आ सकता है। सर, इज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट द ओनली बेसिस फॉर health parameter? Child stunting, wasting, absolutely they do have a role, not here. They do have a role in micro policy formulation but not here. यहाँ पर सिर्फ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को लिया गया क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है उसको सबसे ज्यादा ग्रेविटी जिस चीज की है, जिस पैरामीटर की, उसे चुन लिया गया है। बाकी अब तो शिफ्ट ही हो रहे हैं ना। आप देखिए, इस पर तो बहुत बड़ा डिबेट चला, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ये अभी बहुत बड़े डिबेट का हिस्सा है कि ये क्या बात, चाइल्ड मोर्टेलिटी तो बहुत ठीक है। अब तो जब सब लोग इंप्रूव कर गए, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है पिछले 2-3 दशकों में, बहुत अच्छे से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो कंट्रोल हो गई। कितना 200-250 हुआ करता था पहले, 200 या कुछ हुआ करता था चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और अभी जो है वो 30 के अंदर या कितने आ गया है, देखिएगा आप लोग बेटर हैं डेटा में, वो देख लीजिएगा। तो यह स्थिति है। तो जब अब आप उस पर इंप्रूव कर गए हैं, तब आप उसका बेनिफिट कब तक लेंगे कि हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत कम हो गया। अब बाकी एस्पेक्ट को देखिए भाई, कि जो बच जा रहे हैं वो कितना अच्छे से जी रहे हैं। इसीलिए आप आगे देखेंगे हेल्दी लाइफ इंडेक्स एक चीज है। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे रुके हुए हो, आगे अभी जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेल्दी लाइफ का जो है लॉन्गेविटी कितनी है, वो भी देखा जाता है। And PPP can vary in any country with inflation. Yes, it does. Indeed, it does. Purchasing power का सीधा संबंध इसी से है कि हमारे यहाँ जो चीज बिक रही है वो उसका जो है वो हमारे करेंसी में उसका मेरी अपनी एज एन इंडिविजुअल मेरी परचेसिंग पावर कैसी है। लेकिन वो होता यह है कि अलग अलग कंट्रीज में, क्योंकि अब ओपन है ना, मैं ये नहीं कहता कि जो है दैट विल न्यूट्रलाइज। अभी जब से ओपन इकोनॉमीज हो गई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो है वो ट्रेड और सब कुछ हो रहा है, तो फिर मोर और घूम के जो है वो बहुत ज्यादा विसंगति नहीं रह जाती है एक देश से दूसरे देश में। लेकिन देयर इज नो डाउट अबाउट इट, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट जो है वो इसमें रोल प्ले करेगी ही करेगी। फाइन। दूसरा पॉइंट क्या है भाई कि इट स्ट्रगल्स विद द एक्यूरेसी एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द अंडरलाइंग डेटा। एग्जांपल क्या है कि आप बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी दो कंट्री का पर कैपिटा इनकम सेम हो, लेकिन इनइक्वालिटीज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो दोनों का, वही बात उसी को दूसरे तरीके से कह लीजिए कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सही मायने में दो अलग अलग देशों की तुलना करने के लिए एक वैज्ञानिक जो है वो आधार है? तो वहां काफी हद तक है, लेकिन सावधान रहिए कि ऐसा हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम दो कंट्रीज का सेम हो और उसके बाद भी उनकी इनकम इनइक्वालिटीज अलग अलग हो। तो आप उनको एक पायदान पे कैसे रख सकते हैं? हेल्थ एजुकेशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अभी सिर्फ और सिर्फ तीसरे पैरामीटर पे हैं हम। क्या आप नहीं इस बात को नहीं एग्री करते कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का असली खेल ये है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? Isn't it? इनकम की अर्निंग नहीं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में कैसा है। तो अगर यह बात सच है और अभी भी आप परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा इनकम पर रुके हुए हैं, तो ये तो उस बारे में तो बात ही नहीं करता है कि जो है वो इनकम का यूज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। अभी भी है तो घूम घुमा के आप जनरेशन पे ही। तो ऐसा संभव नहीं है क्या कि पर कैपिटा इनकम नेपाल की फलाने के 4 कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम एक जैसी हो, लेकिन अंदर जब झांक कर देखिए तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा संभव है, बहुत जगह ऐसा होता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबकी अलग अलग है, ये तो होगा ही, वास्तविक तथ्य है। तो इसलिए अभी भी कुछ न कुछ जो है वो लिमिटेशंस है। तीसरी चीज, इट फेल्स टू कैलिब्रेट फॉर हाईली कोरिलेटेड डेटा ऑन डिफरेंट डोमेन्स। ये क्या है? सुनने में तो बहुत भयानक लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान तथ्य। जैसे इसको सोशियो इकोनॉमिक ग्रेडियंट कहते हैं।
ध्यान से सुने इस बात को कि एक चीज, 3 पैरामीटर हमने लिए, 3 पैरामीटर, उनमें से एक चीज दूसरे पैरामीटर को आपस में भी तो नहीं प्रभावित कर रहा है। आप समझे मेरी बात? जिसका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जांपल, चलिए पर कैपिटा इनकम से शुरू किया कि मेरी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, तो इस बात की संभावना है कि नहीं है कि मेरे और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार की एजुकेशन अच्छे से होगी? बिल्कुल है। क्या इस बात की संभावना, अब क्योंकि मैं ज्यादा एजुकेटेड हो गया हूं, मेरी घर मेरी पत्नी में ज्यादा एजुकेटेड है, तो क्या इस बात की संभावना और नहीं बढ़ जाती है कि जब हमारे यहाँ जो बच्चा जन्म लेगा, हो सकता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बेटर हो, क्योंकि नेसेसरी जो प्रिकॉशंस है, जो नेसेसरी जो है हाइजीन है, नेसेसरी कंडीशंस है, वो हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो एजुकेटेड होने का फर्क जो है वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी पे पड़ सकता है, ज्यादा पर कैपिटा इनकम हो, इसका फर्क एजुकेशन पे पड़ सकता है। तो आपस में जो डेटा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका रिकैलिब्रेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए पूरी तरह से साइंटिफिक या मैथमेटिकली एकदम करेक्ट चीज नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक कह लीजिए वो उसके लिए जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है। काफी हद तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में अच्छा है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। पता चला बेसिक टाइप का क्वेश्चन, जैसे प्री में इस बार कई बार बेसिक पे आ गए सीधे जो है, तो कहीं मेंस में भी कभी भी बेसिक्स पे पूछ ले इंटरव्यू में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी है। ये है वो लिमिटेशंस, आप जाने रहिए, ठीक है? तो फिर लिमिटेशंस तो जान गए। बिल्कुल सही बात है पूजा, बिल्कुल सही बात है कि आपका सब पर कैपिटा इनकम ठीक है, ये ठीक है। फिर आपके यहाँ पर सोसाइटी में जो एजुकेशन का सेक्टराइजेशन है वो कैसा है? आपके गवर्नमेंट सेक्टर की एजुकेशन एग्जांपल देख लीजिए आप। बहुत, चलो तुम छेड़ दिया तो मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि दिल्ली एक दूसरा देश है और जो है उत्तर प्रदेश एक दूसरा देश है, ठीक है? दोनों जगह गरीब रहते हैं, एक ही इंडियन इकोनॉमी के ही हिस्से हैं, दोनों जगह गरीब लोग रहते हैं, गरीब जनता रहती है। अब यदि यह बात सही है, एक क्षण के लिए मानिए कि जो है वहां की जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बहुत बेहतर कर दिया है। उनकी तुलना में, मान लीजिए तुलना के तौर पर, तुलनीय रूप में देखा जाए तो मान लीजिए किसी जगह में ऐसा नहीं हुआ है। यही चीज स्वास्थ्य संबंधी ले लीजिए। अगर यह बात सही है तो दिल्ली में जो व्यक्ति है जिसकी परचेजिंग पावर सेम है, और यूपी में भी मान लीजिए उसकी परचेजिंग पावर सेम है, दिल्ली और यूपी वाले दोनों गरीब आदमी का, लेकिन वो कम परचेजिंग पावर होते हुए भी एजुकेशन जो है बेटर अटेंड कर ले जाएगा, क्योंकि वहां पर एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर ही इतना अच्छा दे रहा है कि उसके लिए जो है वो आदमी का अपना जो है, जिसे कहते हैं ना, पर कैपिटा इनका बहुत मटेरियल नहीं रह गया। सोचकर देखिएगा इस बात को। तो एजुकेशन, हेल्थ, ये कौन सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, इस पर भी डिबेट होगा। फिर इसको भी आपको समझने की जरूरत है। इस तरह के बहुत सारे एंगल्स आते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में एक बहुत बेहतर प्रयास है। पहले के सभी जितने भी मापदंड रहे हैं उनसे बहुत बेहतर प्रयास है, लेकिन अपने इसकी भी कुछ जो है सीमाएं हैं, बात को समझ लीजिएगा। अर्थ है सीमाएं हैं, तो यहाँ पर रुक नहीं जाना है। ये आपका होमवर्क बगल में लिखा हुआ है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आ गई है, ह्यूमन लाइफ इंडिकेटर आ गया है, इस तरह की चीजें नया नया इवॉल्व होता रहता है, ठीक है? लेकिन जितने भी चीजें इवॉल्व हो रही हैं, चलिए अभी अभी बोल के फिर रुक जाता हूं। जितनी भी चीजें ये फिर से इवॉल्व हो रही हैं, उनमें सबसे जिसकी चर्चा अधिक है पूरे विश्व में, वो है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की, ठीक है? जिसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा है भूटान वाले की। वो अभी बात करेंगे, अभी रुक जाते हैं। तो मैं आपको पर्सपेक्टिव दे चुका हूं अब कि कहां से शुरू हुए थे, जीडीपी से, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी से शुरू हुए थे। फिर कहां पहुंचे कि नहीं, जीडीपी में वो बात नहीं है, थोड़ा सा इसको रिफाइन कीजिए भाई, थोड़ा सही करिए। तो पता लगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या करेंगे, तो फिर आए कि नहीं भाई पर कैपिटा इनकम का बात करिए थोड़ा सा। पर कैपिटा इनकम में भी फिर कहाँ गए कि जो है नहीं, ये भी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करिए। बोला ठीक है, वो भी कर दिए। उसके बाद फिर और आगे गए, बोला ये सबसे फायदा क्या है, अगर बहुत परचेजिंग पावर पैरिटी हो रहा है, लेकिन अगर लोगों के पास जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, लोगों के पास जो है वो अपना मानवीय विकास करने की जो है का स्कोप नहीं है, तो क्या फायदा है? तो धीरे धीरे फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी नहीं संतोष हुआ, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये वो सब हुआ। उसके बाद हुआ कि नहीं, ये भी काफी नहीं, अल्टीमेटली जाना तो मानवीय विकास की ओर है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक अच्छा इंडिकेटर, उससे भी मन नहीं भरा हमारा। नहीं ठीक है, ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं, आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। तो कहा गया कि और क्या करें, तो सोशल फलाना फलाना सब जो मैंने आपको बताया। अल्टीमेटली आके कहा रुके कि ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस का इंडेक्स निकालिए।
अल्टीमेटली सब चीज का जो हिंदुस्तान हमेशा से जो भारतीय संस्कृति कहती आई है, सदियों से जो कहती आई है कि जो है सुख और संतोष, इससे बड़ा कोई जो है वो एसेट नहीं है लाइफ में। तो अल्टीमेटली घूम के वहीं पहुंचे, और कैसे हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हम हमेशा कहते रहते हैं कि जरूरी नहीं कि जीडीपी का जो ग्रोथ हो वो उससे डेवलपमेंट हो ही रहा हो, उसका थ्योरी से हटकर रियल एग्जांपल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स करके एक रिपोर्ट निकली थी यूनाइटेड नेशंस की, आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। उसमें ये जीडीपी ग्रोथ का स्टेज है, देखिए। ठीक है, किस किस परसेंट से ग्रो किया है जीडीपी कंट्रीज का। जहां नो डेटा है उसे छोड़ दीजिए, बाकी जो रेड है वो बहुत स्लो ग्रो किए हैं। उससे ज्यादा ग्रोथ, उससे ज्यादा ग्रोथ, उससे ज्यादा ग्रोथ, और सबसे ज्यादा ग्रोथ ये एरियाज में आप देख ही रहे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ग्रोथ है यहाँ पर। खूब सारा ऐसा ट्रांसलेट भी हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट में? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख रहे हैं। देखिए वेरी हाई, सबसे गाढ़ा वाला गहरा रंग है। और जीडीपी देखो, हमारी बात समझे आप? जो हम दिखाना चाह रहे थे वो बतिया समझे कि जीडीपी का ग्रोथ देखिए आधे % से भी कम हो रहा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए तो समझ गए बात आप? तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपके सामने उपस्थित है, इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने का कोई मतलब नहीं, एक एक कंट्रीज का दिखाने की जरूरत नहीं है। इंडिया का चलिए, भारत का एग्जांपल ले लीजिए। भारत जो है वो कहाँ बैठता है? मुझे लगता है भारत यहाँ बैठा है, इस वाले कलर में, तो मीडियम में हम लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ में देखिए, समझे, हाईएस्ट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो यू गॉट माय पॉइंट। दीज टू क्लियरली एल्यूसिडेट द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक, कि भाई जरूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ जो है ट्रांसलेट हो। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं भाई? ये आप जानते हैं कि 1990 से जो है ये मैटर जो है इन सब पे फोकस उसी समय से सब पर शुरू हुआ है भाई। ठीक है, वहां से अगर तुलना की जाए तो 0.429 से उठ के हम 0.645 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल इंक्रीज देखिए तो 50% जैसा इंप्रूवमेंट हमने किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है, जैसा कि हम और आप जानते हैं और पढ़ चुके हैं, कि इनइक्वालिटी जो बढ़ी है, साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़े हैं, लेकिन साथ साथ अंदर छिपी हुई जो असमानता है वो जो बढ़ी है, वो तो एचडीआई भी नहीं मेजर कर पाता है ना। हमने यही बात की ना, इसकी यही सीमा है कि ये भी नहीं पकड़ पाता है। तो इसीलिए एचडीआई को फिर उससे कैलिब्रेट करते हैं, जाने रही इस चीज को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल लिया, उसके बाद इनइक्वालिटी जिस रेट से ग्रो किया हुआ उसको इसमें फैक्टर इन करते हैं ताकि सही वैल्यू आ सके। तो जब वो करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये 26% गिर गया है। आप समझे मेरी बात? जैसे कि हम लोग उदाहरण लिए थे कि नहीं लिए थे? हमने उदाहरण लिया था कि हमारी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन मान लो जनसंख्या भी बढ़ती जाए तो क्या फायदा है? फिर जो डिस्पोजेबल इनकम तो कम होती जाएगी ना। हमारे परिवार में मान लीजिए 2 लोग रहे, हम जो है हस्बैंड और वाइफ 2 लोग थे, तब उनकी जो है वो सैलरी थी 2,000 रुपया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उनकी सैलरी जो हो गई वो 3,000 रुपया हो गई। साथ साथ एक नया मेंबर भी मान लीजिए घर में आ गया, फिर उनकी सैलरी 4,000 हो गई, तो पता चला एक और नया मेंबर आ गया। और अभी एज्यूम कर लीजिए कि एक मेंबर पे उतना ही खर्चा होता है, सब पे बराबर खर्चा होता है, सब पे। ठीक है, ऐसा एजम्पशन ले लीजिए। तो जिस स्पीड से हमारी इनकम बढ़ रही है फैमिली की, नंबर भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या फायदा होगा? ओवरऑल जो कांस्टेंट रह गया ना मामला, आप देखिए तो वही बात, वही लॉजिक यहाँ लागू होता है कि जिस स्पीड से आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंप्रूवमेंट किए, उसी स्पीड से अंदर छिपी हुई असमानता, विषमता जो है, आर्थिक विषमता, वो भी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। तो उससे उसको इसमें एडजस्ट करोगे तब असली पिक्चर सामने आएगी ना, वही चीज है। तो उसकी तुलना में आप देखिए, एक और एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ। इकोनॉमी में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। महंगाई की जब भी बात होती है, आप इस बात को समझ लीजिए, इंटरेस्ट रेट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि भाई अगर आप इन्फ्लेशन जिस दर से बढ़ रही है, अब आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, जिस दर से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, अगर आपका पैसा उस दर से नहीं बढ़ रहा है तो आप जिसमें पैसा लगाए हुए हैं वो एसेट नहीं, लायबिलिटी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ पहले। मान लो एफडी में पैसा लगाए हुए हो, फिक्स डिपॉजिट में हमने पैसा रख दिया, हमने या हमारे माता पिता ने। ठीक है, इन्फ्लेशन की रेट है 8%, मान लो महंगाई 8% के रेट से बढ़ रही है और बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 6% से, तो 2% घर से जाएगा कि नहीं जाएगा?
आपका जो एसेट है वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है जितना इन्फ्लेशन कूदती चली जा रही है, आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। यस, एग्जैक्टली वही पॉइंट है यहाँ पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स है उनमें आप जितनी ग्रोथ कर रहे हैं उससे ज्यादा तो इनइक्वालिटी बढ़ी जा रही है, तो आप उतना पीछे पीछे हुए जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली नुकसान का सौदा हो गया। देख लीजिए आप कि वैसे तुलना कीजिए ऊपर ऊपर बिना एडजस्टमेंट, बिना इनइक्वालिटी को फैक्टर इन किए अगर आप करेंगे कंपैरिजन तो पता चलेगा कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया हमने 50%। लेकिन जब उसको फैक्टर इन करेंगे तो पता चलेगा कि 26% नीचे है मामला, यानी हम पीछे चल रहे हैं। इसी को विश्लेषण कहा जाता है। आप प्लीज समझिए इस बात। यह योग्यता आपको पैदा करनी है अपने आप में। डेटा आपके सामने हो तो विश्लेषण करना आपको आना चाहिए, आपको काम आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यूएनडीपी ऑल्सो कैलकुलेट्स द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सोचिए, ठीक है, एक इस पूरी एक्सरसाइज का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो कि बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और वो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। हमने कहा था आपसे कि ये एक ऐसी इंडेक्स है जिसको जेंडर वाइज भी निकाला जा सकता है। तो उसमें देखिए क्या स्थिति है हमारी। फीमेल्स के लिए 0.573, मेल्स के लिए 0.699। देख लीजिए कितना कितना जबरदस्त डिफरेंस हो गया। इसको 60 और 70 का डिफरेंस समझिए। 60 उसको मान लीजिए, 70 इसे मान लीजिए। दैट्स टू मच इफ यू सी। मेल और फीमेल में इसी पॉपुलेशन में जिसकी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फलाना फलाना है, उस पॉपुलेशन में अगर अंदर जाके देखिए तो जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक विषमता इतनी है कि उनका जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इतना नीचे है, मेल्स की तुलना में फीमेल्स का नीचे है। दैट्स नॉट डन। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अब हम क्या सीखे इस डेटा से? हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स मानी जा सकती है इन कंपैरिजन टू द अर्लियर इंडाइसेस। हाउएवर इट इज फार फ्रॉम परफेक्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ 1 2 3 4 5 रीजंस। आप ऐसे बता दीजिएगा अगर जरूरत पड़ती है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में जो है कंप्लीट नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप उसमें इंडिया का स्पेसिफिक एग्जांपल दे दीजिएगा कि इनइक्वालिटी से इसको एडजस्ट न किया जाए जब तक इसको जेंडर के जो जेंडर इनइक्वालिटी है और इनकम इनइक्वालिटी है, इन दोनों से जब तक फैक्टर इन ना किया जाए तब तक ये सही पिक्चर नहीं देती है। बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ ऐसा है जो हम लोगों ने किया है, भारत सरकार ने और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने कुछ ऐसा किया है जिससे कहा जा सके कि जो है कोशिश कर रही है सरकार अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन वगैरह पे रियल टाइम बेसिस पे वो जो है वो इसको मॉनिटर करते हैं। और 49 इंडिकेटर्स हैं इसमें। कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम है। आपका होमवर्क हो गया कि इसके बारे में 4 पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। 4 पॉइंट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम सही रुद्र, एकदम सही बात है। नीति आयोग तो हम पढ़ेंगे अच्छे से, नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको 4 से 5 पॉइंट जितना भी आपको याद रहे, कम से कम 3 और 4 या 5 याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा, हम पूरे इसमें फंडा ही रखेंगे, हार्ड कोर प्रोफेशनलिस्ट की तरह पढ़ाई करेंगे। कोई भी पॉइंट हमारे सामने बोला जाए, 3 मिनिमम 3 और मैक्सिमम चलिए 5-6, इतने पॉइंट आपके दिमाग में रखें। मैक्सिमम के तो वैसे तो कोई लिमिट है, आपकी जैसी मेमोरी हो, कम से कम 3 पॉइंट बोल सकिए उसके बारे में। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? ये इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा लागू किया गया है, इस सन से चल रहा है, इतने समय से चल रहा है, इसमें इस पर फोकस किया गया है और इससे ये फायदा होने वाला है, इसकी ये कमियां हैं। हो गया। कोई भी आपके सामने बोल दे। अगला देख लीजिए, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत शब्द जैसे ही बोला जाए 4-5 पॉइंट तरह दिमाग में आ जाना चाहिए। यह है पढ़ाई करने का सही तरीका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, एकेडमिक्स होता तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसी तरह प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करनी चाहिए कि आप मुझसे पॉइंट बोलेंगे, कोई भी टॉपिक बोलेंगे उस पर 3-4 पॉइंट मैं बोल दूंगा, वो भी डेटा वाले, इधर उधर वाले नहीं कि इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से, वो वाला क्रिएटिव राइटिंग यहाँ पर नहीं चलेगा। 4 कॉन्क्रीट पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए। आयुष्मान भारत इस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। आयुष्मान भारत में ये टारगेट एरिया है, टारगेट पॉपुलेशन ये रहती है। आयुष्मान भारत की स्कीम में एक्चुअली ये फायदे होते हैं। आयुष्मान भारत इन पॉइंट्स पे कमजोर पड़ जाता है। फिनिश्ड। 4 पॉइंट आपके हमेशा दिमाग में होने चाहिए। तो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। तो आयुष्मान भारत हो गया, जनधन योजना आप जानते ही है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इन्हीं सब के थ्रू मिला जुला के अल्टीमेटली आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंप्रूव करने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि क्या बनाएंगे अपने आंसर का बेसिस? सिंपल है, वो जिन 3 क्षेत्रों के बल पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनती है, उन्हीं क्षेत्रों के जो प्रयास है वो बता दीजिए आप। और वो कौन से प्रयास है? हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए।
जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई हो गया। अगर वो इंप्रूव होंगे, वो अच्छे से काम करेंगे योजनाएं, तो एसडीआई अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। फाइन, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। कोई भी एस्पेक्ट पूछा जाए तो वो उसके जो कंपोनेंट्स है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको सीधे भारत सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ दीजिए, हो गया काम, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोशल इंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सारा काम करके। ठीक है भाई, पुअर स्टेट्स आप जानते हैं कि अभी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ है ना। हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं ना। नीति आयोग का जो मूल मंत्र है वो क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? क्या हुआ कि भाई हमें पहले की तरह नहीं होगा, कमांड इकोनॉमी की तरह मत चलाइए इसे। कमांड इकोनॉमी का अर्थ क्या हुआ कि सेंटर से जो कमांड आया, जो प्लानिंग बॉडी है वो सेंट्रल बॉडी है, उससे जो कमांड आया वो आप लोग फॉलो कीजिए, प्रदेश सरकार उसको फॉलो करे। ये फेडरलिज्म में जो है वो एक लिमिटेशन है, एक शॉर्टकमिंग के तौर पे देखा जाता है। इसीलिए नीति आयोग का जो जिसे कह लीजिए कि आइडियोलॉजिकल जो फैब्रिक है वो ये है कि भाई नहीं, हम सबको साथ में लेकर उनकी समस्याएं वो बेटर जानते हैं, राज्यों की समस्याएं वो अच्छे से समझते हैं, उनको भी प्लानिंग में उतना ही पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, अपने लिए वो खुद भी प्लान कर सके। यही दिस इज हाउ सोशल इंक्लूजन कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जिसे कहते हैं। India edged up one spot to rank 129th out of 189 countries on the 2019 HDI released by United Nations and so on. Inequality and deprivation, वही बात आ जाएगी कि inequality और deprivation हालांकि अभी भी they continue to be high। इसीलिए जब आप एडजस्ट करेंगे तो कहानी कुछ और निकलेगी। For countries like India which have shown great success in reducing absolute poverty, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए भाई कि आपको जो है अंधभक्त भी नहीं होना है और अननेसेसरी का जो है क्रिटिक भी नहीं होना है, जबरदस्ती का क्रिटिक भी नहीं होना है। यही गेम है, आपको बैलेंस रखना है अपना व्यू। तो जिसमें अच्छा किया है वो अच्छाई भी आपको याद होनी चाहिए, और डेटा के साथ, इधर उधर का बकवास नहीं। कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसी थी हमारे कंट्री में एट इंडिपेंडेंस, कैसी थी 1990 के दशक में, कैसी थी और अभी कैसी, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं थी, वो कम हुई है, निश्चित रूप से कम हुई है। जैसे जैसे जब ग्रोथ होती है इकोनॉमी में तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो रिलेटिव पॉवर्टी है, जो आपस में जो है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्टर से दूसरे स्ट्रेटा को जब कंपेयर करेंगे आप, उसमें जो है जब सब साथ साथ बढ़ते हैं तब ठीक है, जब एक बढ़ता चला जा रहा, हम भी बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, तो उस लाइन से तो ऊपर आ गए। देखिए ऐसे होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन खींच दी गई, इसके नीचे जो कोई भी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन उसको बोल दिया गया, ठीक है भाई, इसके नीचे जो भी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं। अब कुछ ऐसा किया गया कि जो लोग इतने में थे वो पिछले 10-20 साल में मान लीजिए ऊपर आ गए, ये बात ठीक है, लेकिन जो लोग यहां थे वो यहां पहुंच गए। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इनके और इनके बीच की इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ गई है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम होने के बावजूद भी वो अब जो है बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं रह गए, लेकिन जितने समय में वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, हो सकता है उतने समय में जो लोग पॉवर्टी लाइन से पहले ऊपर थे वो बहुत ऊपर चले गए। तो इनके दोनों का जो बीच का जो रिलेटिव गैप है वो बढ़ जाएगा, ऐसा संभव है, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों इसीलिए दोनों अलग अलग और महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में किसी के रिडक्शन आ भी जाए, पहली बात तो सबसे ज्यादा बहस इसी पर होनी चाहिए कि पॉवर्टी का इंडिकेटर क्या है, कैलोरीज और ये सब क्या सफिशिएंट है, क्या इस तरह से पॉवर्टी नापी जा सकती है कि नहीं, वो अपने आप में अलग बहस है। लेकिन उसको हमारा वो अधिकार तो है नहीं, हमारा प्राधिकार नहीं है उस पर बहस करना। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि बिलो पॉवर्टी जो पॉवर्टी लाइन है वो अपने आप में एक साइंटिफिक पैरामीटर है, साइंटिफिक जो स्टैंडर्ड है, तो उससे ऊपर आ जाना एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हो सकता है घटा दे, लेकिन जो रिलेटिव गैप है हो सकता है बढ़ गया हो, इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ गई, क्योंकि उतने ही समय में जिनके पास पैसा पैसे को खींचता है, कहते हैं ना, कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है। जितने में आप यहाँ से स्ट्रगल करके 10 पॉइंट पर चढ़े, उतने में जो पहले 10 पॉइंट पे था वो जो 11 पे या 10 पे था वो तब तक 21 और 31 और 51 पे पहुंच गया। दैट्स रिलेटिव इनइक्वालिटी। ठीक है, इस बात को समझे रहिएगा। फाइन, अब बात आती है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरफ कि भाई अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब ठीक है, अल्टीमेटली होना क्या है, अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस, अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल दिस, इट इज ह्यूमन हैप्पीनेस, ह्यूमन फुलफिलमेंट। उसके लिए फिर आया बात कि नहीं, सबसे ज्यादा ध्यान अगर देना है किसी को
तो हैप्पीनेस पर दीजिए। क्यों? ठीक बात है, ठीक बात है। एक एग्जांपल पूजा दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल पूजा ने एक एग्जांपल दिया कि प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स का अगर तुलना कीजिए तो कोविड टाइम जो पैंडेमिक रहा है उसने दोनों को अलग अलग तरह से इफेक्ट किया है। आप सेक्टर्स का ही एग्जांपल ले लीजिए, जो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और फार्मा इंडस्ट्री है, इन दोनों पे क्या कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा है बताइए आप। जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में थे और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थे, लॉकडाउन होगा तो क्या होगा? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है बैठ जाएगी, और फार्मा इंडस्ट्री को जो है क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो वो ग्रो करेगा। तो इस तरह अलग अलग सेक्टर्स के लोग, अलग अलग सेक्टर ही नहीं, समाज के जो विभिन्न अलग अलग वो हैं, उनको भी अलग अलग तरह से प्रभावित करती हैं नीतियां। चैलेंज यही है, चुनौती यही है कि हमको ध्यान ये रखना है कि जो ज्यादा परेशान है उसको ज्यादा स्टेट का इंटरवेंशन और बेनिफिट मिले। आप इक्वली बहुत ही बढ़िया चीज है। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, अभी आपको एक मिनट में सेंटेंस आपको फ्रेम करके बताता हूं। समदृष्टि जो है, कहते हैं ना कि समान दृष्टि से देखना चाहिए, समान, सरकार को समान दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है। समान दृष्टि जो है, हो सकता है वो सबसे बड़ा कारण हो असमानता का। आप सोचिएगा इस लाइन पर, समान दृष्टि रखना। इसीलिए अब यहां से आप सीधे पॉलिटी को जोड़िए इसको, कि समान दृष्टि अगर आप रखेंगे तो जो ज्यादा मजबूत है उसको उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने का कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। जो कमजोर है वो उसका फायदा नहीं ले पाएगा। आगे जितना जितना डिबेट होता है रिजर्वेशन वगैरह पर, किसी की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप संवैधानिक तरीके से इसको देखिए तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, कहां से आता है? इसी आइडियोलॉजी से आता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, कि नहीं, कोई समाज जिसमें पहले से समानता हो उसको आप सम दृष्टि से देखिए, वो समझ में आता है। लेकिन समाज के अलग विभिन्न विभिन्न जो हिस्से हैं वो अगर विषमता से जूझ रहे हैं और तब भी आप समान दृष्टि रखेंगे तो जो ऊपर है वो और ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला हो सकता है वो नीचे चला जाए, क्योंकि उसके हिस्से का भी अपॉर्चुनिटी वो ले जाए। इसीलिए एक जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के हैंड से आप देखिए, सरकार ने जो एक ये लिख रहा हूं, आप बताइएगा कि ये क्या होता है। व्हाट इज दिस? बीमारू का नाम सुना है? ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो कि उस तरह से उतने पेस से उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे समय से, लंबे समय से, जिनकी ग्रोथ रेट जो है सेटिस्फैक्टरी एग्जैक्टली। तो ये जो बीमारू बोला जाता है भाई, इनको स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं बताइए? ये भी सुना है आपने कि नहीं? विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज दिया गया बिहार को, फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, या ये स्पेशल पैकेज दिए। दैट्स एन एक्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इफ यू सी, नॉट नेसेसरली इन द सेम सेंस, बट इस तरह आपको कहने का अर्थ यह है कि जो है समाज का, इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग ऑफ पॉलिसी। तो ये कब हो पाएगी? फाइन ट्यूनिंग ऑफ पॉलिसी कब हो पाएगी? जब प्लानिंग डिसेंट्रलाइज होगी। सिंपल सी बात है। आप जहां बैठे हुए हैं वहां से आप जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उसकी प्रॉब्लम को उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना डिसेंट्रलाइज होकर समझ सकते हैं। तो पंचायती राज की जो संकल्पना है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। आपको यह इस प्रकार से सोच कर अपना जो है एक थॉट प्रोसेस तैयार करना है, इन्हीं तरह से सोचा करें। तो खैर आ जाते हैं इसी पे। वो अलग एस्पेक्ट है पूजा कि जो है सेटिस्फैक्शन तो अलग चीज है। जो सरकार, याद रखिएगा कि देने वाले का जो ड्यूटी है, देने वाले का जो कर्तव्य है, वो लेने वाले के परसेप्शन से चेंज नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हारे पॉइंट में समझ गया। लेकिन जिसका स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों को क्या हो रहा है, कैसे वो इसको देख रहे हैं, और जिनका पेट ही नहीं भरता वो सब, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। यू एज अ प्रोवाइडर यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी गिवन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। उनका परसेप्शन बहुत ज्यादा, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है परसेप्शन को देखना, इकोनॉमी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ओके, आई थिंक यू विल एग्री विद दिस कि जो है ठीक है, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में आ सकता है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन में पब्लिक जो है वो सेटिस्फैक्शन वगैरह में यहां आता है। अब जो आगे आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट उसकी तरफ जा रहे हैं, तो अब आप उसमें आते हैं। तो स्टर्लिंग पैराडॉक्स, इनफैक्ट उसी का नाम है, संजोग की बात देखो तुमने कहा, और अगला टॉपिक ही वही। स्टर्लिंग जो एक बहुत अच्छे सोशल इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने यही कहा कि यही तो विडंबना है। विडंबना यही है कि जो है
डेवलपमेंट हमेशा हैप्पीनेस में हो जाए ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह के सर्वे करिए तब आप डेटा निकाल पाएंगे कि आपके यहाँ के लोग खुश हैं कि नहीं, गरीब ज्यादा खुश है कि हमें, डिपेंड करता है अलग अलग पॉपुलेशन पर। लेकिन इन जनरल क्या होता है, वही जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे, इसको समझिए। स्टर्लिंग पैराडॉक्स क्या है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लास्ट पोजीशन से, आपकी जो करंट पोजीशन है दैट इज अ बेटर पोजीशन, बट बिकॉज समबडी एल्स हैज आल्सो ग्रोन अकॉर्डिंगली, दैट्स व्हाई द रिलेटिव गैप बिटवीन यू एंड दैट पर्सन हैज नॉट रिड्यूस्ड, यू आर स्टिल द सेम। तो तुम उस दुख से दुखी हो रहे हो, अपनी जो लास्ट पोजीशन से अब यहां पर आ गए, उससे आपको खुशी नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि सामने वाला भी ग्रो कर गया और आपको और उसका पोजीशन जो है वो हो सकता है वो गैप कम नहीं हुआ, तो उससे आदमी दुखी हो रहा है, समझे ना। तो इस तरह की चीजें हैं। तो कहने का मतलब डेवलपमेंट हमेशा हैप्पीनेस में चेंज ही हो जाए ये जरूरी नहीं है। ये तो इंडिविजुअल लेवल पर हमने बात की, सेटिस्फेक्शन और इस सब की बात की। इकोनॉमी के लेवल पर देखिए ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल दिया जाता है, कहा जाता है कि उनसे बढ़िया क्या ग्रोथ किया है किसी ने, ग्रोथ ही ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन आज सोसाइटी के फैब्रिक को देखिए, अगर वहां के, तो आप जानते नहीं है क्या, जो है स्कूलों में जो लड़के जो है वो पागल होकर सटक के जो है वो मशीन गन लेके आ जाते हैं, जबरदस्ती जो है टीचर और लड़कों को भून दे रहे हैं। आपने सुना है कि नहीं सुना है? ये इस प्रकार के जो है नरसंहार हो जा रहे हैं बिना मतलब, बिना किसी बात के। तो ये कहां से आ रहा है? सोशल डिसकंटेंटमेंट कहां से आ रहा है भाई? डेवलपमेंट इसका मतलब हैप्पीनेस में चेंज नहीं हो रहा है। आप जो चीज करंट अफेयर्स में जो भी देखिए उसको जोड़िए इस चीज से कि क्यों ऐसा हो रहा है। हायर अनसर्टेनिटीज है, एंजाइटीज ज्यादा बढ़ी हुई है लोगों की, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, सोशल ट्रस्ट आपस में नहीं है, लो कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, इस तरह की चीजें बढ़ रही है, जबकि डेवलपमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो जब तक ये चीजें नहीं एड्रेस होंगी, जरूरी नहीं कि विकास जो है वो लोगों के जो है वो प्रसन्नता में भी जो भागीदार हो। जरूरी नहीं है कि विकास से प्रसन्नता आए, हमेशा ऐसा नहीं होता, दैट इज नॉट नेसेसरी। गन कल्चर देख, कहीं भी देख, बहुत सारे ऐसे जो है कंट्रीज के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया है, कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट तो बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन सोशल कंटेंट हो सकता है नहीं हो, क्योंकि आप पर घूमकर हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है कि उसमें फ्रीडम टू मेक चॉइसेस भी आता है। सोच के देखिए आता है कि नहीं? आप अपने लिए जो है अपना चुनाव कर सकें, सरकार के चुनाव की नहीं बात कर रहे हैं, जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए आप अपने करियर का चुनाव कर सकें, अपने लिए लाइफ पार्टनर का चुनाव कर सकें, ये सब भी चीजें तो आती है। बहुत डेवलप कर गए, लेकिन फ्रीडम ऑफ मेकिंग चॉइसेस नहीं है, देन इट्स ऑफ नो यूज, वो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि यही स्टर्लिंग पैराडॉक्स है कि डेवलपमेंट होता जा रहा है लेकिन हैप्पीनेस नहीं बढ़ रही है। ये पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। तो भूटान ने क्या किया? भूटान ने कैसे पूरे विश्व को रास्ता दिखाया? एक छोटी सी हिमालयन किंगडम ने क्यों पूरे जो है, जैसे कहते हैं कि दीप स्तंभ की तरह काम किया विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए। वो नया कॉन्सेप्ट लेके आए 1970s में। ग्रॉस, वांगचुक साहब जो थे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट लेके आए कि छोड़ो, हमको जीडीपी की जो लड़ाई है, जीडीपी की जो मैड रेस है, उसमें हमको नहीं जाना है। ठीक है, हमारे संसाधन सीमित है, हम छोटे देश हैं, हम चारों तरफ से लैंड लॉक्ड हैं, लोगों पर निर्भर हैं, सब ठीक है। लेकिन जो हम कर सकें, हमारी फिलोसफी है कि जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है जनरली हैप्पी होने चाहिए, दे शुड बी सेटिस्फाइड, दे शुड बी हैप्पी विद देयर लाइफ। हम उस पर तो काम कर सकते हैं, उसमें तो पैसा नहीं लगता है। हमने एग्जांपल जो लिया था कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऐसे तमाम पैरामीटर्स हैं जिनके लिए इनकम और वेल्थ पे डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। वही चीज उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, हम कन्वेंशनल आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जो है अल्टीमेटली डेवलपमेंट और हैप्पीनेस के लिए रुपए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। ये बात सही है कि हायर रियल पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके साथ गुड गवर्नेंस भी होनी चाहिए। लेकर क्या करेंगे? अगर आप बहुत पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लेकिन करप्शन इतना ज्यादा है कि अल्टीमेटली जो है 100 में से 85 पैसा जो है पहुंचता ही नहीं गरीब के पास, 15 पैसा पहुंचता है, क्या फायदा है उसका? गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, लोगों को अपने गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एनवायरमेंट का भी जो है वो हर पॉलिसी, एवरी पॉलिसी दैट मस्ट हैव अ कंसिडरेशन फॉर एनवायरमेंट, कि हमारा जो है इस पॉलिसी का, इस डिसीजन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी होना चाहिए। तीसरी चीज है कल्चरल प्रमोशन। कल्चर्स क्यों? आप सोचकर बताइए कि कल्चर्स, बहुत सारी रूढ़ियां भी है उसमें, मैं एग्री करता हूं, मैं किसी भी रूढ़ी को डिफेंड करने वाला आदमी नहीं हूं। आई विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस टू अपोज एनीथिंग दैट्स ऑर्थोडॉक्सिकली रॉन्ग एंड इट हैज स्टिल परपेचुएटेड इटसेल्फ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जनरली जो अच्छी चीजें हैं वो कल्चर का हिस्सा क्यों बन जाती हैं और हजारों सालों तक क्यों वो जिंदा रहती है? क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे ऑल्सो सर्व एज एन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट
पॉपुलेशन को एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की तरह काम करता है कल्चर जो है। कल्चर अगर आपका स्ट्रांग है, कल्चरल वैल्यूज एथिक्स ये आपके स्ट्रांग है, तो ये जो साइको सोशियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं इनसे बहुत हद तक ये चीजें प्रोटेक्ट करती हैं। आप इस बात को जाने रहिए। तमाम तरह के त्योहार, आपका जो है फोक फोक जो फैसेट्स हैं, आपके जो है जो मान्यताएं हैं पुरानी जो चली आ रही हैं, ठीक है, वो क्यों ऐसा होता है आप मुझे बताइए ना। जो लोग अनपढ़ हैं, गंवार है, वो उनका उनका जानते हैं, उनका उनका लाइन क्या, सही गलत पर भी मत जाइए। वास्तविकता जो है वो ये है, सच ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा बहस करेंगे, बहुत ज्यादा ये कर लेना चाहिए आपको, वो कर लेना चाहिए, तो गांव का जो आदमी है वो आपसे बोलेगा अब जॉन हो तुम देखा जाइए, भगवान के हाथ में है सब। क्यों? ये स्ट्रेंथ नहीं तो और क्या है? लब लो लो हमेशा डरे रहना, इनसिक्योर रहना, वो कहना, और एक है कि अब जो होगा देखा जाएगा। आई एम नॉट गोइंग वेदर गॉड इज द क्रिएशन ऑफ मैन और मैन इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। आई एम नॉट सेइंग दैट, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट इफ दैट पर्सन हैज अ बिलीफ सिस्टम, एक कल्चरल बिलीफ है, कल्चरल जो है वो आइडेंटिटी चली आ रही है, he is fine with it, he can deal with it। सिचुएशन से डील कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये भी तो हैप्पीनेस का पार्ट है। तो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो कि अपने आपके फोक जो है बिलीफ से रिलेटेड है, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी से रिलेटेड है। वो जब तक जो है स्ट्रांग नहीं है तब तक आप अल्टीमेट हैप्पीनेस एज ए सोसाइटी एज ए होल का हैप्पीनेस का बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एस्पेक्ट भूटान ने कहा कि ये भी उतना ही जरूरी है, और उन्होंने इसको कहा गया 4 पिलर्स, 4 पिलर्स एंड 9 डोमेन्स। जो 9 डोमेन्स है वो नीचे लिखी हुई है आपके, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन, टाइम का इस्तेमाल, यानी आप टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सो रहे हो, जग रहे हो, कितने घंटे सोते हो, कितने घंटे काम करते हैं। गुड गवर्नेंस, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, साइकोलॉजिकल वेलबींग, कम्युनिटी वाइटैलिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस। इतनी चीजें जो है, इतनी चीजों को मिलाकर कहा गया कि 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। ये 4 स्तंभ हो गए समझिए, और ये 9 कमरे हैं। एक ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग देख लीजिए जिसमें 4 पिलर है और 9 छोटे छोटे जो है वो सेक्शंस हैं, उनसे मिलकर हैप्पीनेस बनता है। ऐसा भूटान ने दुनिया को रास्ता दिखाया। एक छोटा सा ये न्यूज है, न्यूज आइटम है इंडिया टुडे का, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है कि डीपली हैप्पी, एक्सटेंसिवली हैप्पी, नैरोली हैप्पी और अनहैप्पी। देखिए कितना कम लोग अनहैप्पी है जिन्होंने अपने आप को अनहैप्पी जो है वो कहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सब कुछ आ गया, इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ गए। तो कभी हैप्पीनेस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, भूटान का एग्जांपल देना मत भूलिएगा। कहने की बात यह है, और जो है स्पेशली भूटान के हैप्पीनेस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होती है और वो इंडिया उसके लिए कैसे, भारत कैसे क्या कदम उठा सकता है, इन सब तरह की बात पूछी जा सकती है, ठीक है। याद रहे आपको कि 2011 में यूनाइटेड, ये कोई हवाई और सिर्फ जो है आपस के जनरल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रैंकिंग इंडिया की आप बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन की बात नहीं रह गई है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अभी जो है यूनाइटेड नेशंस ने इस पर्टिकुलर चीज को, हैप्पीनेस को एक गोल की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है, फंडामेंटल ह्यूमन गोल की तरह, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के तौर पे मनाया भी जाता है, ये भी आपको मालूम रहे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती रहती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 2020, 2021 की भी आ गई है। 2021 में विशेष रूप से कोविड ने कैसा असर डाला है इस पर बहुत डिटेल में बातचीत हुई है, ठीक है। खुशहाली मापने का पैमाना, ये देखिए हिंदी न्यूज भी आई हुई है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। जीवन का मूल्यांकन होगा, लाइफ इवैल्यूएशंस, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। कि जिस दिन सर्वे हो रहा है कैसे किया जाता है वो, और उसके साथ साथ 6 और डेटा है जिनको ध्यान रखा जाता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी हो गया, स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ, देखिए आ गया ये। आदित्य जो बात उठा रहे थे ये देखिए आया, सिर्फ लॉन्ग लाइफ नहीं, हेल्दी लॉन्ग लाइफ, उसकी बात इसमें फैक्टर इन कर ली गई, ठीक है। फ्रीडम टू मेक चॉइस है, जेनरोसिटी, ये देखिए सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। इतने प्रकार के जो है, जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो भाई 6 कंपोनेंट्स हैं ये। दुनिया के 6 सबसे खुशहाल देश कौन से हैं भाई, और जब आप ये देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वो देश नहीं है जिनकी जीडीपी सबसे अधिक। तो वो जो पैराडॉक्स हम आज तक बात करते आए हैं, वो पैराडॉक्स वाकई एग्जिस्ट करता है इस संसार में, धरातल पे जो है वो उसको वो एग्जिस्ट करता है, ओके। तो ये जितने भी देश सबसे आगे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह, ये जीडीपी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज नहीं है, नॉट नेसेसरली, बट दे आर स्टिल द हैप्पीएस्ट।
सबने अपना अलग अलग तरीका चुना है कि उस ह्यूमन डेवलपमेंट और हैप्पीनेस के गोल को कैसे अचीव किया जाए। उसका सबसे जो है ग्लेयरिंग एग्जाम्पल फिनलैंड है। फिनलैंड को एक केस स्टडी के रूप में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, स्पेशली वहां का एजुकेशन सेक्टर जो है। देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है। अमेरिका 19वां नंबर पे है, जो कि महाशक्ति है। उसके बाद भी ये वर्ल्ड का एवरेज है 5.47, और टोटल स्थिति ये है 144वां, और सब रैंक देख लीजिए सारी। अब आप, क्योंकि अंदर से तो अब आप जानते ही हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, हैप्पीनेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखिए तो उसका जीडीपी से जरूरी नहीं, कोई संबंध नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रिलेशनशिप तो रहेगा ही, क्योंकि उस चीज के आप गरीबी सबसे ज्यादा हैप्पीनेस को खत्म करने वाली चीज है ना भाई। अनलेस, अब देखिए यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, चलिए मैं जनरली फिलोसॉफिकल बातों से दूर रहना चाहता हूँ प्रतियोगी परीक्षा में, फिर भी जान लीजिए जल्दी से कि गरीब होने के बाद भी हैप्पी होना संभव नहीं है अनलेस कि आप आध्यात्मिक हो। एक लाइन में बस, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तो अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, अगर हैप्पीनेस की बात घूम घुमा के वहीं आ गया, तो फिर हिंदुस्तान, भारतीय संस्कृति ने जो है पूरे विश्व को सदियों से यह रास्ता दिखाया है कि जो है अल्टीमेटली उनको, जो सबसे ज्यादा हैप्पी लोग हैं वो जो है वो कमंडल और झोला लेके घूमते हैं। कुल मिलाकर बात यह है। तो इसका यह अर्थ नहीं है, इसको नैरो माइंडेडली आप इंटरप्रेट मत करिएगा, इसका यह अर्थ नहीं है कि सब लोग जो है कमंडल लेके घूमने लगे। No, that's not what I'm saying. I'm saying that spiritualism is an instrument, that is an invisible kind of instrument, but it can give you visible results when it comes to gross national happiness. You should know that. अब कुछ बात कर लेते हैं, चलिए कोई पूछ ही ले सवाल। हम लोग जनरल डिस्कशन तो बहुत कर लीजिए। इंडिया का रैंक क्यों डिक्लाइन हो रहा है, इस प्रकार का मान लीजिए सवाल आ गया एकदम सटाक से, तो अब क्या बोलेंगे? आप जनरल टाइप का लिख जाएंगे, इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज हो रहा है, पैंडेमिक आ गया है, वो सब ठीक। अब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। नंबर आपको सिक्योर करना है, अच्छे से स्कोर करना है, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कुछ एक डेटा में आपको बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन जो है बहुत ही स्ट्रिंजेंट तरीके से इन्फोर्स किया। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एनफोर्स होने वाला जो लॉकडाउन था वो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन में से एक माना गया है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, तो क्योंकि ऐसा था इसलिए इनकम, ऑब्वियसली लॉस ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड हुआ है। रूरल में तो उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये देखिए अर्बन में क्या स्थिति हुई है, जबरदस्त लॉस हुआ है, 41% जैसा लॉस हुआ है। और इसीलिए इकोनॉमिक डी ग्रोथ हो गई है, डी ग्रोथ। उल्टा जो है, जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो कमी होती गई है, 24% जैसा डी ग्रोथ हो गई है। एम्प्लॉयमेंट भी 24% जैसा गिरा इस बीच में। तो एक रीजन ये हो गया कि लॉस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये हुआ। दूसरी चीज क्या हुई, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। ध्यान से देखिए, ये सब जो है एनालिटिकल डेटा है, आपको काम आएगा। इंडिया अटेन्ड ए स्कोर ऑफ 0.617। एक सर्वे किया गया जिसमें यह देखा गया कि सोशल सपोर्ट आपके यहाँ कैसा है भाई, सोसाइटी में सोशल सपोर्ट किस तरह का है। ठीक है, तो 95 नेशंस का सर्वे किया गया जिसमें स्थिति ये है भाई कि 92 नंबर पर इंडिया आया। ये स्थिति है। ठीक है, सोशल सपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी आप समझ रहे हैं कि हमारी भाई जरूरत पड़े, हमका लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो हमारे पास कैसा हमारा पेंशन सिस्टम है, जो है सीनियर सिटीजन के लिए क्या व्यवस्था है, हमारे जरूरत पड़ने पर हमारे रिश्तेदार नातेदार जो है एज ए सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन काम आते हैं कि नहीं आते हैं, इस सब तरह की चीज। अगली चीज है डेमोग्राफिक कंपोजिशन। तो इंडिया में तो हम लोग हमेशा खुश होते हैं। देखिए कैसे बारीकी से एनालिसिस की जाती है। इंडिया में तो हमेशा इस चीज को एक एसेट के तौर पर ही रखा जाता है कि ये तो यंगेस्ट नेशन है। आप जानते होंगे कि अगर 15 से 64 के बीच दो तिहाई है ना, शायद 2/3 जैसी पॉपुलेशन जो है वो 15 साल से 65 साल के बीच की उम्र की है। तो ये तो यंगेस्ट नेशन है। तो यंगेस्ट नेशन है तो डेमोग्राफिक कंपोजिशन तो एक फेवरेबल फैक्टर है। तो इसको हम, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? क्या इसकी वजह से भी इंडिया की रैंकिंग गिर रही है? वहां की नहीं, इसका एक दूसरा पक्ष है। वो दूसरा पक्ष ये है कि आधा हिंदुस्तान का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 30 से 60 साल एज का है। ठीक, ये बात मान गए? हाँ मान गए, ठीक है। 30 to 60 के बीच के में ये पॉपुलेशन का जो है होता है। ओके फाइन। तो इसमें डिमेरिट क्या है? बोला डिमेरिट ये नहीं है, एक दूसरा एस्पेक्ट है। वो ये है कि जो हेल्थ केयर, आप हेल्थ केयर वगैरह जो है बहुत सारा जो है अच्छा कर रहे हैं, कोशिश करके आप जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज का जो असली फायदा है, मेन फायदा है, वो यंगस्टर्स को मिलता है कि सीनियर सिटीजन्स को मिलता है या बहुत छोटे बच्चों को मिलता है? बताइए। हेल्थ सेक्टर,
आदमी के लाइफ स्पैन को अगर एक ऐसे खींच लीजिए, 1 से लेकर 80 साल तक को, 1 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक को खींच लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए। इसमें इस बीच में सबसे हेल्दीएस्ट कौन सा पॉपुलेशन रहता है? गॉसियन बिल बनेगा कि नहीं बनेगा? लगभग एक आप ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसे नहीं बनेगा क्या कि जब बच्चा छोटा रहता है तब और जब आदमी बुढ़ा होता है तब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हेल्थ सिस्टम की, हेल्थ सबसे ज्यादा वल्नरेबल उस समय होता है, आदमी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है हेल्थ सेक्टर पर। जवान जहान आदमी जो बीच वाला है, ये जवान जहान आदमी है, हो सकता है उसको हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट का उतना ज्यादा फायदा नहीं मिले। एग्जैक्टली वही चीज कही जा रही है कि आपने जो एफर्ट्स किए बहुत सारा किया, लेकिन उसका एक्चुअल जो एडवांटेज है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को उस प्रोपोर्शन में हुआ ही नहीं, वो उधर गया, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसकी तरफ गया। तो डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो है वो नेगेटिव मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका एक अनछुआ पहलू ये है कि आपके जो हेल्थ सेक्टर में किए गए जो इंटरवेंशन है, ये सब किए गए, वो अल्टीमेटली जो आधे पॉपुलेशन से लेना देना नहीं। और समझने वाली बात यह है कि ये जो 50% पॉपुलेशन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 50% पॉपुलेशन ये हो गया, 50% मान लीजिए इधर है 25 ऐसा कर लीजिए, सिर्फ समझने के लिए। मेन बीच वाला 50% है, तो इसको हेल्थ वाले उसका कोई फायदा हुआ नहीं। अल्टीमेटली इन लोगों को हुआ, मेनली फायदा हुआ सीनियर सिटीजन्स को। और ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पेंडेमिक में इनको जो है बहुत फायदा हुआ, बहुत इन पर मेहनत की गई, सबसे ज्यादा हिट भी वही रहे और मेहनत भी इनके ऊपर की गई। लेकिन जो गेन इनको हुआ वो इमोशनल, जो उनको ट्रॉमा हुआ, इन 50% लोगों की नौकरी छूट जाने से, इन 50% लोगों की पीड़ा और वेदना से, उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं के बाल बच्चे हैं, बेटा बहू है ना सब, तो उनके लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, लॉस ऑफ लाइवलीहुड से, इनकम से और उनके डेस्पेयर से जो सीनियर सिटीजन को जो गेन होना चाहिए लाइफ में हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर को लेकर, सोशल सपोर्ट को लेकर जो फायदा होना था वो भी सेट ऑफ हो गया। उससे ज्यादा वो परेशान हो गए। तो जब परेशान हो गए तो हैप्पीनेस कहां से होगी? तो इस तरह से चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर पर्सपेक्टिव के बाद में आएंगे। फिर अगला है लो एजुकेशन अटेनमेंट। बोला ये कैसे है? ये भी इंडिया की रैंकिंग को प्रभावित करता है। बोला यस ऑफ कोर्स, इंडिया में स्थिति ही ऐसी है। अबाउट 88% ऑफ द वर्कफोर्स हैव हायर सेकेंडरी एजुकेशन और बिलो। 88% वर्कफोर्स जो हमारा है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या मैक्सिमम जो पढ़ पाया है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक जा पाया है। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी हुआ, रिटेन जॉब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हुए, वो किसको, उसका फायदा किसको मिलेगा? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को तो मिलना नहीं करेगा, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है। तो ये इन सेक्टर्स में जा पाएगा जहां पर सोशल बेनिफिट है। आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, पीपीएफ काटते हैं कि नहीं काटते हैं, सुना होगा आपने। प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन काटते हैं कि नहीं काटते हैं? आप इस प्रकार की नौकरी में जाने लायक ही नहीं है, आपने उस स्तर की आपके क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वहां पर उस प्रकार के परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में या इस प्रकार के स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट का फायदा ले पाइए, तो आपका सोशल सिक्योरिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। आज आप कमा रहे हैं, कल आपको कुछ हो गया, खत्म, फैमिली का कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में जाने के लिए भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है। जब आप उसमें एक बार एंटर कर जाएंगे तो हो सकता है आपका पीपीएफ भी कट रहा है, आपके लिए इंश्योरेंस भी करा दिया जा रहा है, थिंग्स लाइक दैट हैपन। तो लो एजुकेशन का होना अल्टीमेटली ये एम्प्लॉयबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी को भी इंपैक्ट करता है। तो इंडिया का जो स्पेसिफिक डेटा है देख ही रहे हैं आप, 88% जो है वो उस लेवल का नहीं है। फिर और क्या चीज है? अनफेवरेबल परसेप्शन फॉर करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप जानते ही हैं, बट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। नहीं, डिपेंड्स भाई कुशाग्र, यू शुड देन आई एंड यू बोथ शुड स्टडी मोर। आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में जो है पीपीएफ नहीं है, ये एकदम गलत धारणा है। आप पढ़िएगा इसको कि जो एक पर्टिकुलर साइज है, आप उसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको गूगल करके आप पढ़ेंगे। मैं खुद नहीं स्पून फीडिंग करना चाहता, आप इसे पढ़ें, मैं चाहता हूँ आप सब कि सोशल सिक्योरिटी का जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान है सरकार में, क्या क्या नियम है। ठीक है, आप पढ़िएगा एक बार। As per Transparency International, amongst Asian countries, India has the highest overall bribery rate. Now imagine, घूस देने का जो की दर है जो नापी गई है उसमें एशियन कंट्रीज में हाईएस्ट है इंडिया में। और पर्सनल कॉन्टैक्ट यूज करके अपना काम करवाने वाले 46%, वो भी ये हाईएस्ट है दोनों एशियन कंट्रीज में। That's the situation. तो these are the causes of lack of happiness and lack of human development, ये सब करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि प्रॉपर पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। अगर आपको एक इकोनॉमी को, एक सिंगल आदमी को तो हैप्पी बनाना जो है संभव नहीं होता है, एक पूरी पॉपुलेशन को अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस माइंडसेट्स,
अक्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटीज, अक्रॉस डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स, उनको सबको अगर बिल्कुल बिल्कुल बैंक एकदम सर, वो तो है ही, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इनकम डिस्पैरिटी तो सबसे बेसिक चीज है, उस बेसिक चीज है। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस इनकम डिस्पैरिटी भर भी दी जाए किसी तरह से, अगर पूरी भी कर दें, उसके बाद भी इन पे आपको इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, इन पर, इन सारे गोल्स पर भी काम करना पड़ेगा सरकार को, तब जाके जो है हैप्पीनेस वाला गोल जो है फुलफिल होगा। तो कैसे करेंगे वो? तो भाई देखिए, पहले तो आप प्रॉस्पेरिटी को हैप्पीनेस से अलग करके देखिए। पहला स्टेप सरकार के लिए, पहला स्टेप यह है, पॉलिसी मेकर जो है उनके लिए पहली सलाह ये कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का अब समझ जाइए भगवान के लिए कि संपन्नता का प्रसन्नता से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। पहली बात ये समझ लें, ठीक है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस थ्योरी टाइप का बात मत करते रहिए, जो चीज प्रैक्टिस में उतारी जा सके उन पर काम करिए। बोलिए इसका उदाहरण कुछ दीजिए। बोले बहुत सारे उदाहरण अभी दिए जाएंगे। कहने का अर्थ ये क्या है कि जो फील गुड है कि हाँ देश हमारा ऐसा है, भाषण से जो भाषण तक रह जाए वो हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस वो है जो भाषण, नेताजी का भाषण खत्म होने के बाद जब लोग अपने घर जाएं, दूसरे दिन सुबह उठें और अपना जीवन यापन शुरू करें, तब उन्हें अगर कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस महसूस हो अपने लाइफ में, ठीक है, वो हैप्पीनेस है। तो फील गुड पॉपुलिज्म खाली नहीं होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पर होना चाहिए आदमी को। और तीसरी चीज है कि आपके पास हैप्पीनेस डिलीवर करने का जो है वो गोल्स होने चाहिए, और मैकेनिज्म होनी चाहिए, और गोल्स होने चाहिए। बोला सर क्या बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस तो ये तो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। बोले इसी की तो लड़ाई है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये इसी की लड़ाई तो मैं कह रहा हूं कि इसको सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के तौर पे मत डिस्कस करिए आप पॉलिसी मेकिंग में, आप इसको धरातल पर उतर सकने वाली वास्तविकता के रूप में प्लानिंग करिए। ये कैसे हो सकता है सर, हैप्पीनेस कैसे किसी को सिखाई जा सकती है? फॉर्चुनेटली सिखाई जा सकती है एक्चुअली, और बहुत सारे लोगों ने करके दिखा दिया है। अगर मुझे ध्यान से याद आता है, न्यूजीलैंड वगैरह ने, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने वेल बीइंग और हैप्पीनेस को जो है अपने आप में उसकी बजटिंग कर रखी है, उसका बजट ही वेल बीइंग बजट जैसा ले आए, इस तरह की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आप अपने इंडिया में ही देखिए, अपने भारत में बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जो सरकारी गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने हैप्पीनेस को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, और मेजरेबल टारगेट्स जो है उन्होंने पूरे किए हैं। ऐसा लोग कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, गुजरात यूनिवर्सिटी हैप्पीनेस काउंसलिंग करके एक प्रोग्राम शुरू किया है, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है प्रॉपर, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने हैप्पीनेस कैंप्स, इनफैक्ट उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस ही बनाई हुई है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो है ये प्रसन्नता मंत्रालय, हैप्पीनेस यूनिवर्सिटी जैसा, जो खुशहाली मंत्रालय जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने हैप्पीनेस इंडेक्स रखा हुआ है, डिपार्टमेंट रखा हुआ है मेजर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग स्तर पे बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। और अगर आपको जनरल स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, तो ये जितने भी अलग अलग 3-4 सेक्टर्स हैं, सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया, लाइवलीहुड हो गया, हेल्थ हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, अगर आप मेरे साथ बैठ के 5 मिनट खाली माइंड अप्लाई कीजिए और सरकार की जितनी स्कीम्स चल रही हैं, तो उनको आप भी तो ऐसे बांट सकते हैं जैसे मैंने बांटा है, देखिए आप। और नहीं तो रटते रह जाइए, स्कीम नंबर 1, स्कीम नंबर 2, योजना ये रखते रह जाइए। जबकि अब आप देखिए, इस नजरिए से देखिए आप कि सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये योजनाएं हैं, लाइवलीहुड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ये योजनाएं हैं, हेल्थ के लिए ये योजना है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए योजना है। इस प्रकार से आप पढ़िए, पॉलिसी मेकिंग का जो फ्रेमवर्क है माइंड का, उस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और चीजें आपकी हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली ये देखिए, एनजीओ टाइप का है, वे टू फाउंडेशन करके है, उन्होंने भी दिल्ली में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका काम अब क्या है, यहाँ से क्या शुरू होता है कि भाई इंडिया में, भारत ने हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। एक दो एग्जांपल इधर से, एक दो एग्जांपल इधर से, एक दो एग्जांपल इधर से दे दिया, हो गया काम खत्म। सर क्या है ना कि देखो, जो आपने ये चार्ट बनाया है 1 2 3 4, ये बड़ा अच्छा है। जो जीएस का आप इसको इकोनॉमिक्स में यूज करो, अच्छी बात है, तो ठीक है। अभी इसको आप और क्या कर सकते हो, जो सोसाइटी का पेपर है, जो आपका जीएस फर्स्ट है, उस सोसाइटी में जो सोशल अपलिफ्टमेंट है वो कहां से आ रहा है, आप इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को आप जीएस फर्स्ट पेपर में लेके जाओ। मान लो कोई ऐसा सवाल आता है जीएस में कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कैसे हो रहा है, तो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट वो इकोनॉमिक्स नहीं पूछ लेगा, आप इन चीजों का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो कि सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में हमारा समाज कैसे काम कर रहा है। जो सरकार की नीतियां वो समाज का भागी होता है,
तो आप इस चीज का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हो, ये भी एक आर्ट है। तो जो ये सौर ने चार्ट बनाया है, चार्ट इतना ज्यादा अच्छा है, इस चार्ट को आप निकालो, अपने कमरे की दीवार पे लगाओ, आप ऐसे ही याद करो। मैं बार बार बोलता हूं, सौर का जो चार्ट है वो क्वेश्चन पेपर में आप लेके जाओ, किसी तरह से आंसर शीट में लेके जाओ, आप इन चार्ट को बना दोगे। मान लो आपने उजाला स्कीम प्रधानमंत्री योजना लिख दी, बाकी आप नहीं भी लिख पाए तो मार्क्स कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हालांकि इतने में छोड़ने का नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इन द वर्स्ट सिचुएशन आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपके पास टाइम की शॉर्टेज आ गई है, आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगा, कोई भी हो गया, आप एक चार्ट ही ठोक दो वहां पे, यू विल गेट द मार्क्स। तो आप इस जितने चार्ट सौर के हैं, आप सब चार्ट का प्रिंट आउट निकालो, सबका आप अपने कमरे की दीवार में लगाओ, आप ऐसे ही याद कर जाओ। दूसरा, आप जो सौर की इकोनॉमी का क्लास है उसको आप सोसाइटी से रिलेट करो, आप देखो सोसाइटी में इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, आपको बहुत हेल्प करेगा सोसाइटी के चैप्टर को लिखने के लिए। सोसाइटी का गलत फहमी है कि जो सोसाइटी का चैप्टर है सिर्फ सोशियोलॉजी बात करता नहीं, वो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की मिक्स बात करता है। बगैर इकोनॉमी को ऐड किए सोसाइटी इंप्रूव कर ही नहीं सकती है, यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इस चार्ट को आप लोग याद करिए और इसको आप यूज करने की कोशिश करिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सब दे देंगे हम लोग, लेकिन मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेट की how this chart can be used in the much more way. Thank you. Thanks a lot. सर थैंक यू सर। ये आपको बता देते हैं हम, ऐसा कुछ बच्चों ने जिन्होंने अप्रोच किया है उनको मैं स्पेसिफिकली बता दिया हूँ, जनरली बता दिया हूँ कि जो पीडीएफ विदहोल्ड करके रखे हैं हम लोग, उसके पीछे बहुत वेल थॉट प्रोसेस है। मैं इस बात को जानता हूँ कि एक फॉल्स सेंस ऑफ लर्निंग आता है और एक कॉन्फिडेंस आता है अननेसेसरी का। पीडीएफ जब आपके पास रहता है तो ये दिमाग में रहता है कि पढ़ ही लेंगे तो मिल गया, पढ़ लेंगे। नहीं, आप इस बात को आप रियलाइज करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा, मेरी बात समझ में आएगी आपको कि आपका नुकसान है। इस स्टेज पे पीडीएफ मैं नहीं दूंगा अभी, मैं पहले आपको ये मजबूर करूंगा कि आप 2-3 बार लेक्चर को सुने, इसलिए हमको और तो कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं, आपके लिए बनाया है और किसके लिए बनाया है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि उसको लेकर जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं ना, बैठ के जब नोट्स बनाते हैं, तो वो जो आपकी जैसे कहते हैं ज्ञानेंद्रियां जो इस्तेमाल एजुकेशनल साइकोलॉजी के हिसाब से मैं रोके हूँ, जितना आप इन्वॉल्व होकर उसको करते कराते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद ये तो आपका ही है, तो बस उसका टाइम मैंने मन में निर्धारित कर रखा है और वो आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करिए, आपका ही एसेट है, हम सब आपके ही हैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। उसके निश्चिंत रहिए, सब आपको मिल जाएगा। मेहनत करवा रहे हैं अभी जानबूझ के, ये मेहनत बचाने के लिए बनाया है, लेकिन अभी जानबूझ के आपसे मेहनत जबरदस्ती की करवा रहे हैं ताकि आप उसके आदी हो जाए, ठीक है। पल्लवी कपूर का एक आर्टिकल मिल गया था मुझे, मैंने इसमें डाल दिया है, वो आपको जब प्रोवाइड कर, अभी परेशान मत होइएगा, अभी ही पढ़ लेना है ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा तभी से पढ़ लिया करिएगा। जो चीज मैं बस ये ध्यान रखेंगे आप, और इसको आप डिटेल में तब पढ़िएगा जब पीडीएफ आपको मिलेगा, और तब तक खाली गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उनके पर्सपेक्टिव से खाली समझ लीजिए। और लास्ट जो एस्पेक्ट है, 10 मिनट में इसको फिनिश करते हैं, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। इस पे बहुत बात होती है भाई, और आप जानते होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। आया तो था मैं, जस्ट मिनट होल्ड ऑन, मैं दिखा देता हूं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे तो आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि आपको मालूम भी तो है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो, पहले तो टॉपिक देख लीजिए, आपको मालूम हो तो टॉपिक ये है। देखिए जिस प्रकार से हमने पढ़ने की कोशिश की है, तो उसमें प्लानिंग वाला तो आप देख ही रहे हैं ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉलिसी इवोल्यूशन इन इंडिया, प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक, इसको इंडिया स्पेसिफिक पढ़ना बाकी है, डोंट वरी बाकी है, ठीक है। ये देखिए ग्रोथ डेवलपमेंट, 2 एस्पेक्ट जो है हम आज समझिए कवर कर लेंगे आज के तक के, उसमें देखिए तो देखें अंडर डेवलपमेंट हुआ, हमने पढ़ा, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड वेलबींग हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ओवरव्यू ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं देखें आप, यहां से देखें, यहां से शुरू करें आप इस चीज को देखने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो हमने एक इस पर वो भी किया था क्लास भी, आपको याद होगा। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज द साइन क्वा नॉन फॉर
टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें आप देखें 1700 जो है उसमें सस्टेनेबल एनवायरमेंट और सस्टेनेबल एनर्जी की भी बात है। ठीक है, इंडिया ने कैसे कैसे प्रोग्रेस की है सस्टेनेबल एनवायरमेंट और एनर्जी के लिए, क्या क्या जो स्कीम्स आई, सिर्फ वही लिखना है इसमें, सिंपल सा ही लिख देना है। आपको मैंने उसी समय बता दिया था, उसमें मुझे तो प्रश्न याद भी नहीं था, तभी मैंने आपको कहा था कि 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन 17 में इंडिया ने जो जो स्टेप्स लिए हैं इनको इसी के थ्रू याद कर लीजिए और ऐसे ही काम हो जाएगा। फिर देखिए, while we found India's demographic dividend, we ignored the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? कहाँ से आएगा एम्प्लॉयमेंट? ये एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और ये भी एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है। तो इस प्रकार से देखिए घूम घुमा के इंक्लूसिव ग्रोथ उनका और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक फेवरेट टॉपिक है। और अगर ना भी पूछा जाए, ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये डायरेक्टली ना भी पूछा जाए तो ये इनडायरेक्टली ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मेंस का एग्जाम हो, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट कर रहा हूं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि मेंस का यूपीएससी का एग्जाम हो और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ का सब्सटेंशियल क्वेश्चन नहीं आवे अच्छा सा, ये संभव नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो जब भी बात आवे इंक्लूसिव ग्रोथ, कोई भी पूछे इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है भाई, तो बोलिए जिसमें यह 5 चीजों का ध्यान रखा जाए उसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इंक्लूसिव मतलब किसका इंक्लूजन भाई? इंक्लूजन किसका? उन्हीं का जो कि इनकम जब बढ़ती है तब उसका फायदा जिन तक नहीं पहुंच पाता है, उनको अगर इंक्लूड कर लिया जाए इस फायदे में, उसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। कि ग्रोथ तो हो लेकिन सबको साथ लेकर हो, सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो यही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी है, वहां से इस पर अगर मुझे ध्यान है ठीक से, तो वहां से इस पर जो है बल देना शुरू किया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं तो क्या फायदा, फिर और तो कोई लाभ नहीं है। ग्रोथ तो होती जाएगी, इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी, और इनइक्वालिटीज अगर बहुत हद तक बढ़ जाए तो सिर्फ बात इकोनॉमी तक नहीं रह जाती है, सोशल फैब्रिक बिखर जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आर्थिक विषमता जो है वो सामाजिक एकता को भी भंग कर सकती है। एग्जाम्पल उसका यही है सबसे बड़ा, कि आप किसी को बहुत ज्यादा अगर वो कर देंगे, इनइक्वालिटी बहुत बढ़ा देंगे, तो फिर ये जो आदमी जो मांगता है वो छीनने लगेगा फिर। बाकी आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। तो एजुकेशन एंड स्किल्स, फिस्कल एफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल ग्रोथ और एसेट बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, ये 5 अगर शामिल हो, ये 5 दृष्टिकोण अगर शामिल हो किसी पॉलिसी मेकिंग में, तो आप कह सकते हैं कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बात कर रही है। एजुकेशन स्किल की बात क्या, सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, क्वालिटी से भी पहले क्या कहा गया, एक्सेस, की पहुंच हो सबकी भाई। एजुकेशन ऐसी हो कि सबकी पहुंच में हो, पहले सबकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित कर दीजिए, उसके बाद उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव कर दीजिए। और फिर सभी को, क्योंकि आज का समय ऐसा है, अक्रॉस द बोर्ड सबको डिजिटली लिटरेट बनाइए, सबको जो है वो डिजिटल लिटरेसी सब तक पहुंचाइए। एजुकेशन की बात ये हो गई। फिजिकल एफिशिएंसी का क्या अर्थ हुआ कि एक टैक्स कोड होना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, फिजिकल ट्रांसफर्स होने चाहिए। सुनने में लगेगा कि सर ये तो कुछ कोरिलेट नहीं कर पाए, बहुत आसान सी बात है। फिजिकल एफिशिएंसी का अर्थ हुए, सबसे पहला अर्थ हुआ कि आपको कहां से कितना टैक्स रेज करना है ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं हिल जाए, कोई उनका जो है ओवरऑल जो बैलेंस है सोसाइटी का, इकोनॉमिक बैलेंस है, वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए। आपके द्वारा लगाया गया टैक्स जो है वो डिस्टॉर्शन नहीं पैदा करके मार्केट में प्राइसेस को नहीं जो है डिस्टॉर्ट कर दे। ये सब ध्यान रखते हुए कहां से कितना टैक्स लगाना है, किस प्रकार का टैक्स लगाना है, डायरेक्ट टैक्स लगाना है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है, ये जो कंसिडरेशन है नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको ताकि आप समझ जाए। एग्जाम्पल क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जिसे कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या अर्थ हुआ कि जो गरीब है, अगर आप कहें कि नहीं हम तो समानता से देखते हैं भाई, सबको समानता से देखते हैं, फ्लैट रेट रहेगा टैक्स का, तो ये तो गलत बात है भाई। जिसका टोटल इनकम 5 लाख है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो 5 लाख में तो ज्यादा हो गया समाज में, 3 लाख रुपया टोटल साल का, जिसका 3 लाख रुपया टोटल इनकम है, इसको एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए टैक्स वाले को, आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। 2 इंडिविजुअल लीजिए, ए और बी, जल्दी से बता देता हूं मैं। ए और बी, ए की टोटल इनकम है 3 लाख, बी की टोटल इनकम है 10 लाख, और आप कहते हैं कि हम तो भाई बराबर टैक्स लगाते हैं, सब पे समानता, हम समानता से देखते हैं सबको। इन पर भी आपने लगा दिया 30% टैक्स, मान लीजिए 30%, और इस पर भी लगा दिया 30% टैक्स, दोनों पे 30% लगा। आपको कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो 3 लाख रुपए में से कितना टैक्स चला जाएगा जी, बताइए जरा, सब गणित के महारथी लोग बैठे हुए हैं, बताइए। 90,000 रुपए टैक्स ले गए उसका, और यहां से कितना ले जाएंगे,
3 लाख जैसा टैक्स चला जाएगा, मोटा मोटी समझ लीजिए, खाली उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है बात भाई? 1 मिनट, आपका चैट बॉक्स कहाँ गया, बाकी पता रहे। हाँ ठीक है, सही सही जा रहे हैं हम लोग। ओके, ये बात समझ गए आप? तो आपको देखने से क्या लगेगा? आपको देखने से ये लगेगा कि अरे ये तो ठीक ही कर रही है सरकार। जिसका 10 लाख इनकम है उनका 3 लाख रुपए उनको जाना ही चाहिए, वो तो एकदम सही सही काम कर रहा है। और जो कम है उसको कम टैक्स पड़ रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत ये है कि जीवन जीने के लिए, जीवन को जो है वो डिग्निटी से और अपने एक जो है मिनिमम कंफर्ट लेवल में जीने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि नहीं। देखिए भाई, खाना पानी का जहां तक सवाल है, वो बहुत ज्यादा अंतर थोड़े आएगा दोनों में। जो 3 लाख रुपया कमाता है वो भी खा पी रहा है, लेकिन आप उसके 3 लाख में से 90,000 निकाल लेते हैं तो उसकी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज वो खत्म हो जाती है लाइफ से। डिस्पोजेबल इनकम उसका बहुत कम बचता है। तो इस 10 लाख में से 3 लाख निकालने के बाद भी इनका 7 लाख डिस्पोजेबल इनकम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? सरकार इस नजरिए से देखती है, आपको जानना चाहिए। 7 लाख रुपीज तभी डिस्पोजेबल इनकम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? जबकि इसमें से 90,000 भी निकालिए, 3 लाख टोटल कमाता था, तो 2,70,000 रुपए इसके पास टोटल बच रहा। अब इसमें से क्या खाएगा, घर का कहां से किराया देगा, कैसे कुछ सेविंग कर पाएगा कि नहीं, अपना सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर पाएगा, कितनी सारी चीजें हैं। ये एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट की बात करें कि ये सोच के कि जो लोग बहुत छोटे हैं उनको अगर आप बेनिफिट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको टैक्स सिस्टम वैसे ही डिवाइस करना पड़ेगा। तो इसका इलाज क्या निकाला सरकार ने, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब कि चलो ऐसा करते हैं कि 2 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं देना है आपको। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए तक है, हाँ तो हाँ जितना भी बचा, सॉरी 2,70,000 लिख दिया मैंने, 2,10,000 होना चाहिए, आई एम सॉरी जल्दबाजी में, 2,10,000। हाँ, अब देखिए इसका सरकार ने क्या रास्ता निकाला, देखिए ये निकाला। फिर से एग्जांपल लीजिए, सरकार क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाती है। कैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का अर्थ क्या हुआ कि आप 2 लाख तक कोई टैक्स ही ना भरिए, जो बाकी 1 लाख है मान लीजिए उस पर मान लीजिए कि जो है 5% भरना है, तो टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ा इस आदमी को, इस व्यक्ति को? 2 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, और जो बाकी का 1 लाख बचा उसमें सिर्फ 5% है, तो टोटल टैक्स कितना हुआ, 5,000 रुपए। ठीक, 10 लाख वाले पर देखिए 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, हाँ कोई टैक्स नहीं है, भी बच गए। अगला 1 लाख पर मान लीजिए 5% है, उसके बाद के 3 लाख पे 10% है, उसके ऊपर वाले 3 2 5 1 6 उसके ऊपर के 4 लाख में मान लीजिए 20% है। आप समझ गए ना? जैसे जैसे आप पे बैंड में बढ़ते जाएंगे आपको अपने इनकम के प्रोपोर्शन में ज्यादा टैक्स पे करना है, इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, डायरेक्ट टैक्स इस तरह से प्रोग्रेसिव होते हैं। अब यही एग्जांपल देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का, और आप समझ जाएंगे। अभी तक जो हमने बातचीत की वो सब डायरेक्ट टैक्स के पर्सपेक्टिव से। इनडायरेक्ट टैक्स को देखिए कैसे होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आदमी 3 लाख रुपए जिसके बेचारे का केवल इनकम है, और ये 10 लाख वाले हैं, जब ये पार्ले जी खरीदने जाएंगे, पार्ले जी, तो इनसे कितना टैक्स लेगी सरकार और इनसे कितना टैक्स लेगी? क्या वहां भी अंतर करती है सरकार कंजम्पशन के टाइम? या जो एमआरपी इनके लिए है वही एमआरपी इनके लिए भी है? अब आप समझ गए मेरा पॉइंट। यही डायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज है इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ फायदे भी हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, हम बाद में टैक्सेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉलिसी मेकिंग में टैक्सेशन जो लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ है, मतलब हम इसको क्या समझे। इसको ये समझिए कि किस समाज के किस तबके पर टैक्स लगाना है, किस पर नहीं लगाना है, नंबर 1। यदि टैक्स लगाना भी है तो कितना लगाना है, नंबर 2। यदि लगाना है तो किस प्रकार का टैक्स लगाना है, नंबर 3। इस तरह की ये जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, इन पर जो विश्लेषण और विचार होता है वही इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये फिस्कल एफिशिएंसी में पहला हो गया, टैक्स कैसा लगाना है, कितना लगाना है। सोशल प्रोटेक्शन कितना देना है, किस पर्टिकुलर ग्रुप को, मजदूरों के किस समूह को प्रोटेक्ट करना है, किसको कैसे करना है, क्या उनके लिए स्कीम चलानी है। तीसरा फिजिकल ट्रांसफर, सब्सिडी कितनी देनी है, किस प्रोडक्ट पे देनी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहिए या सब्सिडाइज करना चाहिए, प्राइस डिस्टॉर्शन तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव हो, यानी प्रोडक्टिव का अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेंस के लिए नहीं हो, अंडर एम्प्लॉयड कोई नहीं हो, जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोडक्टिव हो, जिसमें हम अच्छे से खुद के लिए भी ग्रोथ कर सकें, हमारी भी ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर सकें। लेबर लॉ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज भी ना हो काम की क्वालिटी के साथ, और लेबर लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट भी ना हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो रह गया, आपने ऐसा नियम लगा दिया कि उस सेक्शन के लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं हो। इक्विटेबल ग्रोथ की जहां तक बात है,
उसमें क्या क्या होता है, ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली इस पर तो हम बात ही करते आ रहे हैं कि एक तरफ ग्रोथ पर ध्यान रखिए लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान रखिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज का जो है इंश्योर करिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन करिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का जैसे एग्जांपल क्या हुआ, वो जो बैंक अकाउंट वाला स्कीम रहा, जनधन, जो भी जनधन ही था ना, कि सबका जो है बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत, जो है सब लोग इंक्लूड हो जाए कि किसी को कोई बेनिफिट पहुंचाना है तो जो है आधार कार्ड हो गया, आधार के तहत जो है वो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी से बैंक अकाउंट खुल गया, आप तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ हो गया, जो हेल्थ स्कीम्स चल रही है कि सबको जो है भाई पहुंचे। एसेट बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ कि स्मॉल बिजनेस ओनरशिप हो, ऐसा नहीं कि जो है फ्रीडम हो लोगों को, स्टार्टअप अपना खोल सकें, छोटे छोटे कैपिटल से शुरुआत कर सकें, छोटे लोग भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकें। वरना आप देखते हैं कि जब तक इतना पैसा ना हो तब तक आप ये वाला इंडस्ट्री ही नहीं डाल सकते। अंडरस्टैंड? तो उस तरह का स्मॉल बिजनेस ओनरशिप के लिए भी स्कोप हो। होम एंड फाइनेंशियल एसेट ओनरशिप हो कि घर का ओनरशिप हो, लोगों के पास घर हो, फाइनेंशियल एसेट्स का ओनरशिप हो, वो कोई शेयर ले रहा है, कोई जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर एसेट में, उसकी भी जो है उस तरह का जो है आप चैनल्स क्रिएट करिए, उस तरह का पॉसिबिलिटीज बनाइए। जब इतने सारी चीजें आप करते हैं तब कह सकते हैं कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो हम अगली क्लास में हर एक, क्योंकि यही मेन सेक्टर है पूरी इकोनॉमी में, जब भी आपको सोसाइटी या इकोनॉमी के एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्टीमेटली घूम के आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे ही आवाज आने वाले हैं। इस सेंचुरी का एजेंडा यही है, इंक्लूसिव ग्रोथ। आप ध्यान रखिएगा इस चीज, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। तो इसलिए हर सबका सूत्र दो ही होने वाला है, सस्टेनेबल यानी एनवायरमेंट वाला एस्पेक्ट और इंक्लूसिव। दो ही सूत्र जो है वो गाइड करेंगे, ये दो दीप स्तंभ साबित होंगे आपके हर आंसर के, हर डिस्कशन के, हर जवाब के इंटरव्यू में। ये दो एस्पेक्ट सोशियो इकोनॉमिक्स में आपके हमेशा काम आए। इसीलिए हम इनमें से ये जो पांच हमने अभी चार पांचों देखे, जो 1 2 3 4 5, इन पर डिटेल में अगले क्लास में हम इन पर पढ़ेंगे और एक एक का एग्जाम्पल लेंगे कि कौन सी स्कीम कैसे बेनिफिट कर रही है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आपकी आगे की भी करंट अफेयर्स की क्लास है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने क्वेश्चंस सारे जो है लिख कर रखिएगा, चिंता मत करिएगा। अगले में क्योंकि समय रहेगा हमारे पास खूब सारा, यही खाली पढ़ना है, तो उसमें क्वेश्चंस अपने नोट करके रखिएगा, हम पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।